Warm greetings. Welcome to Wednesdays for Water. We are a citizens collective aiming to walk and talk water. We try to meet every week and connect people with various water worries and wisdoms. And in the process, we wish to curate future water warriors. The way we talk about trivial things for hours, water too needs walking and talking to address the rising water distresses. The way Wednesdays for Water is conceptualized as a prime time show, it wishes to make water everybody's business. The idea of the series was conceptualized in August 2020, and by the end of the year, the team and the structure was pretty much in shape. We started in April 2021 with Dr. Rajendra Singh Ji's inaugural speech. We wish to bring science and society together, and therefore we try to bring in every session either a policymaker or practitioner and a researcher or academician. We also think that future generation is crucial and therefore they have presence in each session. We are going stronger with every week now with session on either quiz, couple of weeks of hard talks and a week of soft session of art and music. There is a simple structure for each session of quiz, hard session and soft session which are moderated by the core team member. Here is a glimpse of what we call as hard sessions and soft sessions. Are we live now through check whether we are echoing? Yeah, we are live now, but I don't think we are echoing now. Not now. I think we are better. We have resolved it. So now we can say each other, hello Yogesh bhai, hello Suresh ji, hello. कैसे हैं योगेश भाई? बस बढ़िया हूँ एकदम। मानसी आप बताओ। बस ठीक है। अच्छा लगा मुझे कि आप बिल्किस जी और नीता जी को भी साथ में लाए हैं। यस, इसी बहाने मैं मिल लूंगी। और आपने सुधा जी के साथ प्रोजेक्ट कुछ चालू किया क्या? नहीं हुआ है अभी तक वहाँ पे। अच्छा, वो तो जबरदस्त मियावाकी चल रहे हैं। हाँ, मियावाकी जबरदस्त। अभी बीच में मतलब फेसबुक पे बात होती रहती है और रेगुलरली शी वाज टेलिंग कभी अहमदाबाद जाते हो तो इधर से जाओ, लेकिन होता है या तो अर्ली मॉर्निंग होते हैं या तो लेट नाइट हो जाते हैं। रास्ते में ही आता है, लेकिन बट बहुत अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे। मतलब काफी डेवलप हो रहा है। तो अभी मेरे ख्याल से आई थिंक 35 वेस्ट वाटर यूज कर रही है। ग्राउंड वाटर मैंने उनको डे 1 मना कर दिया था कि ग्राउंड वाटर से मत करना। राइट। सजीना जी भी आ गई। हेलो सजीना जी, कैसी हैं आप? भाई जो स्पीकर है वो तो कम से कम अपना चेहरा दिखा दो। हाँ कैसे हैं आप? फौजिया जी आप म्यूट पे हैं। Sorry. Hi. Good evening, Dr. Sazina. How are you? Huh? I am good. How are you? Thank you. I think अभी नीता जी थी, वो नॉट भी किया था। नीता भी है अभी। So just to cross check, Vasanta, you are going to do the live, and Megha, if you are, no, I don't see Megha around. Huh? It's already live. And I think Vasanta will start the recording as well. Yes, ma'am. So yeah. So Vasanta, the only thing, recording and pinning also. Yes, I'll be doing that also. फौजिया कुछ बोल रहे थे आप, प्लीज। कैसी pinning भी है? हाँ। So we'll just wait for a few more minutes and then we'll start. I'll just go and get a cup of coffee.
I think, Basanta, we will begin. Yes. It's already 5 p.m. and while the participants keep joining, we will not delay the beginning of the session. Okay, ma'am. Yeah. Start. So you may start recording. Yeah. Good evening, everyone. On behalf of the Wednesdays for Water team and the partnering organizations, EDC Ahmedabad, TIS, Wiki, FluxGen, Counterview, and the Terry School of Advanced Studies, I welcome all of you to the discussion on Atal Bhujal Yojana. Can it give a new lease of life to the groundwater in India? Wednesdays for Water was instituted in April 2021 with the objective to engage in conversation with water experts, grassroots practitioners, policymakers, and youth to explore the complex, intertwined issues associated with water and explore possible solutions. As you all know, the month of March also happens to be the month when we observe the World Water Day. And the World Water Day theme for 2022 is groundwater, making the invisible visible. India is already water stressed, and despite having an average rainfall greater than the global average, we are facing extreme water stress in several parts of the country. There are regions like Chennai, Shimla, which have almost experienced day zero. We draw a quarter of the global groundwater, and at the same time, our 60% of the irrigation demand and 85% of the drinking water requirement comes from groundwater. Today, most of our aquifers are either critical or they are overexploited. Taking cognizance of this problem, in 2019, the government of India launched the Atal Bhujal Yojana. And the purpose of Atal Bhujal Yojana was to revive the groundwater in different parts of the country. Today, we are fortunate enough to be joined by three speakers, Dr. Yogesh Jadeja, Dr. Sazina Bhimani, and Ms. Neeta Khubchandani, who are working with communities to revive the groundwater table in the state of Gujarat. We thank them for taking out time to join us in this discussion. Gujarat, as you may be familiar with, is a coastal state and also an arid to semi-arid region. The region is vulnerable to extreme weather events, floods, droughts, and at the same time, being a coastal state, it is also vulnerable to saltwater intrusion into the groundwater. The IPCC report, Sixth Assessment Report of Working Group 2, which was released on Monday on adaptation and vulnerability, clearly highlights that climate change is going to make this situation worse for everyone, and especially the coastal communities. So let me quickly introduce the speakers to you. So what we would be following the format today is that we have one single presentation, and there are three speakers who would be speaking one after the other on the same presentation and the topic of groundwater, participatory groundwater management. So at first, Dr. Yogesh Jadeja is the founder director of Arid Communities and Technologies, an organization dedicated to working in the field of participatory groundwater management in semi-arid regions of the country. He has completed his master's and doctorate from MS University, Baroda. Even though he started the journey in the area of water in 1993, the concept and implementation of participatory groundwater was introduced by him in the year 2003. His work has featured in several international and national journals, and he has presented his initiatives in many of the international seminars. He is the member of International Association of Hydrologists and also have given his services as working group member of Groundwater in Planning Commission. Our second speaker, Dr. Sazina Bhimani, is a water professional with 17 years of experience in research, training, and capacity building in field of water resource development and management, especially in the arid areas. Since the year 2014, she owns the consulting firm Geoscience Services that offers services on groundwater management programs, geohydrology studies, integrated water resources planning, design and execution of water harvesting, and groundwater recharging techniques and capacity building. Prior to this, she has worked with Arid Communities and Technologies, which
for 10 years. Our third speaker, who is a hardcore social worker and a grassroots practitioner, Ms. Neeta Khubchandani, is engaged in community mobilization in rural areas since 1997. She has 25 years of experience in community mobilization and capacity building in various developmental programs. In various developments. She is presently working with arid communities and technologies. In her current assignment, she deals with community engagement in water resources development program and animal husbandry development program. She has conducted capacity building program for village panchayat body, Pani Samiti, elected women members of panchayat, and other community-based institutions. She also coordinates groups of Maldhari Sangatans for better management of their livelihood. Currently, she's playing a key role in Atal Bhujal Yojana and is working with in 3 blocks of Kutch district in Gujarat. So I would now like to welcome on behalf of the Wednesdays for Water, the 3 speakers, and over to you, Dr. Jadeja, to take the session forward. Thank you, Professor Fauziya. It's a great pleasure for all of us that we are presenting our work and Wednesday for Water series. If you will permit me, I will speak in the Hindi so that me and my team are comfortable. जी बिल्कुल आप हिंदी में बोले हमें हाँ हमारे तो अच्छी तरीके से मतलब हमारी टीम इस पूरे सेशन में इंटरेक्शन कर पाएगी। बिल्कुल सर। मैं सीधा प्रेजेंटेशन शेयर करने की बात करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम थोड़ा फास्ट भाग रहे हैं। जी सर। Hope my screen is visible. Yes, it's visible. Just slideshow, if you can put it on slideshow. Huh? Yeah, yes, okay. So, जैसे कि आपने बताया कि अटल भूजल योजना can it give a new lease of life to groundwater in India? इस बात पे हमें आज इस मुद्दे पे हमें आज बात करनी है। तो इस मुद्दे पे बात करने के लिए मैंने जो प्रेजेंटेशन है इसमें हमारे 2 साथी भी जुड़े हैं, डॉक्टर सजीना भीमानी और नीता। मैं दोनों को बारी बारी इसमें इन्वॉल्व करूंगा, लेकिन मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसका फ्लो कुछ ऐसे रहेगा कि क्योंकि अटल भूजल योजना इज सोलरली बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्रिंसिपल, तो हम शुरुआत करेंगे हमारी बात रखने की पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट क्या क्यों जरूरी है और अटल भूजल योजना में पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को कैसे इंक्लूड किया गया है। ये दोनों चीजों को लेते हुए कच्छ में हमारे क्या अनुभव रहे और इस अनुभव को हम कैसे अटल भूजल योजना के माध्यम से स्केल अप कर रहे हैं विदिन द कच्छ एज वेल एज द कंट्री, और अगर इन चीजों को हमें आगे ले जाना है तो उसका हमारा लास्ट कंक्लूजन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट क्यों जरूरी है और उसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट क्यों जरूरी है। तो सबसे पहली चैलेंज जो है ग्राउंड वाटर के लिए एक तो ये है कि इट्स इनविजिबल रिसोर्स, और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी इनविजिबल चीज है तो उसको कम्युनिकेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे शुरू में हम सब लोगों ने 2 साल पहले जैसे हम ये कोविड पैंडेमिक शुरू हुआ तो कोरोना को ढूंढते थे, पता नहीं चल रहा था। तो सेम वे द ग्राउंड वाटर इज आल्सो इनविजिबल, तो उसको उसकी इनविजिबिलिटी को विजिबल बनाने के लिए उसको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी हार्ड टू कम्युनिकेट। और इसीलिए जो है ग्राउंड वाटर साइंस और उसका मैनेजमेंट को कैसे हम इसमें इन्वॉल्व करिए, वो सबसे बड़ी चैलेंज हम देख रहे थे। और इसमें देखा जाए क्योंकि इट वाज इनविजिबल और हम उसको देख के हमारी जरूरतों को बहुत सेटिस्फाई करता था, तो हमारी रिक्वायरमेंट रहती थी ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इंडस्ट्रीज, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर। तो जब ये ग्राउंड वाटर की शुरुआत हुई, ग्राउंड वाटर यूज करना शुरू हुआ, मुझे याद है जब 1984 से 88 का बहुत बड़ा अकाल देश में हुआ था, उस टाइम पे कहीं ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करना और एक्सप्लोर करने की बहुत बड़े पैमाने पे बात हुई थी और उसमें हमारी ये सारी नीड सेटिस्फाई करने की कहीं बात हुई थी। लेकिन क्योंकि इनविजिबल होने की वजह से उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, तो नियंत्रण नहीं होने की वजह से जब हमने यूज करना शुरू किया, जैसे कि फर्स्ट तराजू दिख रहा है कि हमारी जरूरतें ज्यादा हो गई, ग्राउंड वाटर का सप्लाई कम पड़ने लगा, और जब हमें ये पता चला कि हमारी सप्लाई कम होने लगी, तब हमारी कुछ
आंखें खुलना शुरू हुई और करीब करीब 95-96 ऑनवर्ड हमने ग्राउंड वाटर को ध्यान देना शुरू किया। तो वहां भी जो हमने ध्यान दिया तो हमारा मेजर फोकस था कि हम उसको कैसे सप्लाई बढ़ाए, कैसे रिचार्ज बढ़ाए। तो सारे के सारे जो हमारे अप्रोच रहे, जैसे वाटरशेड मैनेजमेंट अप्रोच है, बेसिन बेस्ड अप्रोच है, सब में कहीं ना कहीं पानी को बढ़ाने की बात की। तो उसने एक काम तो जरूर किया कि डिमांड के अगेंस्ट में, नीड की अगेंस्ट में कहीं सप्लाई बढ़ा के बैलेंस करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे जैसे हम बैलेंस करते गए, ऐसे ऐसे फिर से हमारी नीड और डिमांड बढ़ती रही। तो ये बढ़ती जाएगी तो परिस्थिति तो यही रहेगी कि वी कैन नॉट मेंटेन द बैलेंस, और कभी ऐसे भी हो जाएगा कि वापस हम पास में चले जाए। तो इसीलिए बहुत जरूरी लग रहा था कि ग्राउंड वाटर को अगर मैनेज करना है तो हमें उसकी डिमांड साइड मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ही जोर देना पड़ेगा, और डिमांड साइड मैनेजमेंट के ऊपर जोर देंगे तभी जाके हम उसको सस्टेनेबल बना पाएंगे। तो विद दिस प्रिंसिपल पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को हमने इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। और हमें ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम जो थी वो भी समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारी जरूरत तो बढ़ती गई, उसके पीछे हमारी ग्रिड बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल थी। उसके बावजूद, उसके बाद जो दूसरी बात करें तो हमारा नॉलेज, क्योंकि डेटा गैप और नॉलेज की बहुत बड़ी कमी थी। एक तो इनविजिबल था, दूसरा एक कि ग्राउंड वाटर साइंस को समझना थोड़ा कठिन भी था सामान्य लोगों के लिए। तो नॉलेज भी बहुत लिमिटेड था, और हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में हमें समझ नहीं थी। जैसे कि एक एग्जांपल जो लोगों को आज भेजते हैं तो बोलेंगे कि हम जितना गहरा जाएंगे उतना ज्यादा पानी मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें जो है हमारे दिमाग में बैठ गई है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये सारी जो समस्या है वो लोगों के रिलेटेड है। अगर लोगों के रिलेटेड समस्या है तो उसका समाधान भी हमें लोगों के रिलेटेड होना चाहिए, मीन्स पीपल के सॉल्यूशन की कहीं यहाँ पे बात करनी है। तो विद दिस बैकग्राउंड हमें लग रहा था कि पूरी परिस्थिति को, अगर भूजल को हमें अच्छी तरीके से प्रबंधन करना है तो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ना है। तो लोगों को जोड़ना है तो उसका पार्टिसिपेशन को हमें इस तरीके से जोड़ना पड़ेगा सो दैट हम ग्राउंड वाटर को सस्टेनेबल वे में मैनेज कर पाए। तो कहीं ये एक अप्रोच से चलने वाली चीज नहीं थी। तो हमें लगा कि उसका सबसे पहले चीज तो ये है कि ग्राउंड वाटर साइंस को, हाइड्रोलॉजिकल साइंस को कहीं ना कहीं हमारे सारी प्रक्रियाओं में इन्वॉल्व करने की जरूरत है। और लेकिन उसको इन्वॉल्व करने से पहले कुछ नॉलेज को भी खड़ा करना पड़ेगा, एंड दैट नॉलेज आल्सो नॉट जनरलाइज और सेंट्रलाइज्ड नॉलेज, इट रिक्वायर्स लोकल स्पेसिफिक नॉलेज। तो लोकल स्पेसिफिक नॉलेज खड़ा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ना पड़ेगा। लोगों के पास भी कुछ नॉलेज है, उस नॉलेज के पीछे रहा साइंस को समझना है। तो देन वी इवॉल्व अप्रोच जिसको हम बोलते हैं कि कम्युनिटी को एम्पावर करना है। तो कम्युनिटी में कुछ ऐसे टीम बनाओ, कुछ ऐसे लोगों को तैयार करो जो कि भूजल के जानकार रहे और कम्युनिटी के साथ में रहे। तो वहीं से हमारी शुरुआत हुई कि साइंस को कम्युनिटी की ओर ले गया, कम्युनिटी को थोड़ा साइंस की ओर ले जाना था। तो यहाँ पे मैंने दो शब्द लिखे, सोशलाइजिंग साइंटिस्ट एंड साइंटिफाइंग कम्युनिटी। क्योंकि कम्युनिटी के पास साइंस होता है लेकिन वो साइंस शायद हम समझ नहीं पाते, तो कहीं एक ये गैप को ब्रीच करने की जरूरत है। तो नॉलेज गैप को ब्रीच करना था। देन ब्रीच करते करते वहां पे इस तरीके से नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करे ताकि वो आने वाली पीढ़ियों में ये नॉलेज जाए। तो इस प्रक्रिया की शुरुआत नॉलेज खड़ा करते करते सही ढंग से डिसेंट्रलाइज वाटर सिक्योरिटी प्लान बने और उसमें भूजल जानकारी की कैपेसिटी को बिल्ड किया जाए। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेज। वहां से पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की शुरुआत होती है। आफ्टर दैट वो प्लानिंग को पार्टिसिपेटरी वे में कम्युनिटी को साथ में एंगेज करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ ये हमें मॉनिटर भी करना है कि हम कितना हमारी परिस्थितियों में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो डेफिसिट था वो सरप्लस की ओर जा रहा है, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है कि नहीं है, वो सारी चीज को भी लगातार देखते रहना है, मॉनिटर करते रहना है। तो उस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन की एक प्रक्रिया को डिजाइन किया गया। एंड अगेन आफ्टर सम टाइम, क्योंकि ग्राउंड वाटर और वाटर की अगर बात करें तो ऐसे रिप्लेनिशेबल एंड डायनेमिक रिसोर्स है। तो एक बार प्लान कर लेने से काम नहीं चल जाएगा, उसको लगातार देखना पड़ेगा और लगातार देखते देखते हमारे प्लानिंग को हर बार रिविजिट करना है। तो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे अगर कच्ची में बात करें तो वी आर हैविंग 3 ईयर ऑफ ग्राउंड, तो हम 6 साल में इस प्लान को रिवाइज करते हैं और उसके बाद क्या नई जरूरत है उसको देखना है। तो ये इस साइक्लिक प्रोसेस में पूरी प्रक्रिया को करना है, बट कम्युनिटी की कैपेसिटी बिल्ड करते हुए।
तो ये एक रहा पार्टिसिपेशन एंड नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। उसके बाद जो हमने प्रयास किया वो ये किया कि एक गांव है तो गांव में कुआं है, लेकिन कुएं का जो आधार है उसका एक्यूफर है। तो उस एक्यूफर की पूरी समझ, एक्यूफर की समझ और एक्यूफर से जुड़े हुए एरिया जैसे वाटरशेड में एक्ट एज ए रिचार्ज एरिया, हमारे लैंड यूज अलग अलग है जो डिस्चार्ज एरिया में हमें जानकारी दे सकता है। एंड देन इसके ऊपर इंस्टीट्यूशन बनाना है तो कहीं एक्यूफर बेस या एक्यूफर स्केल या ब्लॉक स्केल पे एक इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत है। तो कुएं से लेके एक ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूशन कैसे बनेगा, इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, तो पूरा स्टेक होल्डर मैपिंग और स्टेक होल्डर मैपिंग के साथ साथ उनके साथ काम करना और एक सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशन की ओर ले जाना। और उस इंस्टीट्यूशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि नॉलेजेबल भूजल जानकार ग्राउंड वाटर इन्फॉर्म पीपल है। तो इन सब लोगों को जोड़ते हुए तो एक कंप्लीटली इंटीग्रेटेड अप्रोच है। और इस अप्रोच में कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा क्योंकि हमें लार्ज स्केल पे इसको काम करने की जरूरत है। ग्राउंड वाटर ऑफ कोर्स इट्स ए कॉमन पूल रिसोर्स बट यूटिलाइज वेरी वेरी इंडिविजुअली। तो इंडिविजुअल लेवल पे हम जब तक नहीं पहुंच पाएंगे तब तक इसका मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है और सस्टेनेबिलिटी लाना तो उससे भी दूर की बात हो जाती है। तो दिस इज अ पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट दैट वी हैव। हमें लगा कि इसको कहीं ना कहीं हमें समाज समुदाय के साथ ले जाने की जरूरत है और डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत है। तो यही पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एक्चुअली अटल भूजल योजना इज अनाउंस इन 2019। और अटल भूजल योजना की जो नींव है वो कहीं ना कहीं रखी गई थी 2010-11 में। एट दैट टाइम वी डिसाइडेड कि डिसेंट्रलाइज्ड वे में ग्राउंड वाटर को मैनेज करना है तो कैसे करना है, तो उसके कुछ एविडेंसेस खड़े करने पड़ेंगे। उसमें से एक एविडेंस हमने जो कच्छ में खड़ा किया, ऑफकोर्स देश में और 4 जगह पे इस तरीके के एविडेंसेस खड़े हुए थे। उस एविडेंस को खड़े होने के बाद जो कॉन्फिडेंस आया दैट इज कन्वर्टेड इनटू अटल भूजल योजना। तो अटल भूजल योजना 2019 में इम्प्लीमेंटेशन में आई। उसका मुख्य उद्देश्य जो रहा है टू सस्टेन द ग्राउंड वाटर एंड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और पायलट बेसिस पे इनिशियल 7 राज्यों को दिया गया है और उस 7 राज्यों में से लगभग 8,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को उसमें कवर किया गया है। और ये गांव या ये जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह चयन किया गया है उसका पहला आधार ये था कि जो ग्राउंड वाटर स्ट्रेस्ड एरिया, क्योंकि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की जो कैटेगरीज होते हैं जिसमें एक्सप्लॉइटेड और ओवर एक्सप्लॉइटेड डिस्ट्रिक्ट को कंसिडर किया गया था और उसमें विलेज का चयन किया गया, उस गांव में इसको पायलट लेवल पे एग्जीक्यूट करना है। ये पूरी योजना जो है वो इम्प्लीमेंट होने वाली है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, जिसमें दोनों का 50-50% सहयोग रहने वाला है। इस योजना के जो दो महत्वपूर्ण अंग है जिसमें एक तो ये है कि लोगों का बिहेवियर चेंज के ऊपर बहुत पैमाने में काम करना है, तो इसीलिए इसमें बहुत सारा कैपेसिटी बिल्डिंग और कम्युनिटी प्रोसेसेस को इंटीग्रेट किया गया है। और दूसरा इस प्रोग्राम में जो जोर शोर से एम्फसाइज किया गया वो है उसका सप्लाई के साथ साथ डिमांड साइड पे बहुत सारे इंटरवेंशन को लिया गया है। तो दिस आर द की फीचर्स ऑफ द अटल भूजल योजना। आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरीके से ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंटेशन में लेने के लिए किस तरीके से एक अप्रोच डिजाइन किया गया है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए दो कंपोनेंट्स लिए गए हैं। एक कंपोनेंट है कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट, दूसरा है कि इंसेंटिव कंपोनेंट। इट्स अ वेरी स्मार्टली डिजाइन की गई अप्रोच है जिसमें अगर आप कुछ काम करोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा और आपको एनकरेजमेंट मिलेगा कि आप इस प्रक्रिया को और एग्रेसिवली आगे ले जाओ। और उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो विलेज से लेकर स्टेट लेवल तक जो भी इंस्टीट्यूशन है उस इंस्टीट्यूशन का स्ट्रेंथनिंग किया जाए ताकि इस पूरी प्रोसेस को आफ्टर द प्रोग्राम कंप्लीशन, प्रोग्राम का ड्यूरेशन नॉर्मली 3 से 5 साल का होता है, तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी ये सस्टेनेबल वे में चलता रहे। तो दैट वाज द फर्स्ट कंपोनेंट जिसमें इंस्टीट्यूट स्ट्रेंथनिंग की बात की है। और उसमें बहुत ही रेंज में मतलब गांव का एक सीआरपी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन से लेके स्टेट लेवल ऑफिशियल तक का कैपेसिटी बिल्डिंग के कंपोनेंट इसमें ऐड किए गए हैं। एंड डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो कि पानी सॉरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के साथ जुड़े हैं उनकी कैपेसिटी उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। दूसरा कंपोनेंट है कि जो प्लान होगा विलेज लेवल पे जो वाटर सिक्योरिटी प्लान बनेंगे उसको इम्प्लीमेंट करते टाइम नॉट ओनली कन्वर्जेंस हमने कितने पैसे इम्प्लीमेंटेशन में लगाए वो कंपोनेंट का
हिस्सा नहीं है, बट इंसेंटिव कंपोनेंट का हिस्सा है कि हमारा जल स्तर कितना बढ़ा, या नीचे जा रहा था वहां रुका, या हमारी क्वालिटी में ये इम्प्रूवमेंट हुआ, तो कितना परसेंटेज हमने इम्प्रूवमेंट किया है। तो वो इम्प्रूवमेंट जो हमारा इंसेंटिव के लिए हमें मोटिवेट करेगा। तो ये दो जो कंपोनेंट्स है, इस कंपोनेंट को एक मेथड से एग्जीक्यूट करने की बात की गई है, और उस पूरी प्रक्रिया में ये कुछ चीजों को इंश्योर किया है कि जिसमें कम्युनिटी ऑनरशिप आना है, नॉलेज एंड साइंस को इंश्योर किया है, डिसेंट्रलाइज अप्रोच को इंश्योर किया है, जो स्ट्रेंथनिंग को इंश्योर किया है, डिमांड सप्लाई मैनेजमेंट को इंश्योर किया है, एंड कन्वर्जेंस, ताकि डुप्लीकेशन को अवॉइड कर पाए। एंड सबसे बड़ा चीज है वो ट्रांसपेरेंसी को भी इसमें इंश्योर करने की यहाँ पे बात की है। तो अटल भूजल योजना अटल भूजल योजना में पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट अप्रोच को अडॉप्ट किया है, एंड दैट गिव्स लॉट्स ऑफ होप कि हम इस प्रक्रिया में कम्युनिटी के जरिए कम्युनिटी को एम्पावर करते हुए ग्राउंड वाटर को सस्टेनेबिलिटी दे पाएंगे। और इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बहुत ही स्मार्टली कुछ एक्शन डिजाइन किए गए हैं, जिसको 5 डिफरेंट डीएलआई बोलते हैं, डिसबर्समेंट लिंक इंडिकेटर्स। और जिसमें आप देखेंगे तो फर्स्ट दो डीएलआईस है जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और इंस्टीट्यूट को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाए गए, जिसमें बहुत सारा नॉलेज और डिसेंट्रलाइज वे में डेटा एंड प्लानिंग की प्रोसेस की बात की। तो फर्स्ट डीएलआई जो है वो पब्लिक डेटा डिस्क्लोजर है। तो गवर्नमेंट के पास ग्राउंड वाटर की जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, डेट डिस्क्लोज करना है। पब्लिक के पास जो डेटा है वो डिस्क्लोज करना है। उसके आधार पे उस डेटा का यूज करते हुए जहाँ पे डेप्थ है, उस डेप्थ को मिटिगेट करने के लिए, मैच करने के लिए पार्टिसिपेटरी वे में वाटर सिक्योरिटी प्लान बनेगा। उसमें सारे डेटा आएंगे, डेटा विल फीड द पब्लिक डिस्क्लोजर डेटा, तो उसको और भी एनरिच करेगा। तो ये फर्स्ट डीएलआई है जो प्लानिंग को फोकस करते हैं, प्लानिंग में साइंस को फोकस करते हैं, एंड प्लानिंग की प्रक्रिया में कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन को भी फोकस करते हैं। तो ये दो डीएलआई खत्म होने के बाद जो दूसरा जो है जिसमें इंसेंटिव कंपोनेंट ज्यादा जुड़े हैं, जिसमें डीएलआई 3 है जो इंश्योर करेगा कि वाटर सिक्योरिटी प्लान जो है वो अप्रूवल मिले, और उसके लिए फाइनेंशियल एलोकेशन जो है वो विलेज से लेकर डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट तक उसका एलोकेशन जाए, और कन्वर्जन वे में ये सारे रिसोर्सेज को यहाँ पे एलोकेट किया जाए। और सिंगल विंडो से अटल भूजल योजना का इम्प्लीमेंटेशन जिस गांव में होना है, वहां की जो पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट कमिटी है, दे शुड हैव कंट्रोल ऑन दिस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। तो ये इंश्योर करना है डीएलआई 3 में। और उसके बाद जो गांव के लिए प्लान हुआ है, जो प्रैक्टिसेस प्लानिंग की गई है, एक्शन प्लान किए गए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन में एरिया कवरेज कितना है उसको एक इंसेंटिव का हिस्सा बना दिया गया है। तो ये सारी प्रोसेस करते करते जो लास्ट में जो प्रोजेक्ट आएगा, तो वहां देखा जाएगा कि जो पहले डीएलआई में जो डेटा थे, पहले डीएलआई में जो स्टेटस था ग्राउंड वाटर का, वो 5वें डीएलआई तक या तो प्रोग्राम खत्म होते होते तक कितना इम्प्रूवमेंट आया है। एंड सेंटर प्रोसेस इस तरीके से डिजाइन किए ताकि आप साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते हो, कम्युनिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हो, रिसोर्सेस जो है जो ग्राउंड वाटर सिचुएशन को स्ट्रेंथन करने के लिए है, एंड स्पेशली रूरल इंडिया के लिए है, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो ये पूरा एक अच्छी तरीके से वेल डिजाइन प्रोग्राम जो है जिसको इम्प्लीमेंट करने की बात की, और हर एक स्टेज में आपको हर एक लेवल का कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, तभी जाकर कम्युनिटी का एंगेजमेंट इसमें हो पाएगा। हर एक लेवल पे साइंस के डिफरेंट पैराडाइम है उसको भी इसमें एंगेज किए गए हैं। तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी फॉर द अटल भूजल योजना। अब से मैं थोड़ा आगे की बात जो है मैं इसमें सजना को रिक्वेस्ट करूंगा कि कच्छ में प्री अटल भूजल योजना जो 2010-11 से लेकर 2015-16 या 17-18 तक जो प्रक्रिया हुई इस एविडेंस क्रिएट करने के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा सजना अगर हम सबको बताती है, तो आई इनवाइट सजना टू टेक दिस डिस्कशन फॉरवर्ड। सजना प्लीज, आप मुझे बताना, मैं स्लाइड को चेंज करता रहूंगा। थैंक यू योगेश भाई। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे योगेश भाई ने बात रखी कि अटल भूजल योजना का क्या कॉन्सेप्ट है और उसके जो वेरियस 5 कंपोनेंट्स है उसकी डिटेल में बात की,
ग्राउंड वाटर का क्या चैलेंजेस है, एक इनविजिबल सोर्स है और इजीली एक्सेसिबल टू एवरीवन वेयरएवर इट अवेलेबल, तो उसकी वजह से उसमें जो काफी सारे वाटर टेबल डिप्लीशन है, वाटर क्वालिटी के काफी सारे इश्यूज उसमें आए हैं। वर्ल्ड वाइड ये ग्राउंड वाटर का सिनेरियो है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अटल भूजल योजना फिर आई। लेकिन ये जरूरत क्यों पड़ी, और कच्छ में से जो एक्सपीरियंसेस है हमारे खास करके ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के, जो बिफोर अटल भूजल योजना कि जो हमने ये सोचा था कि विदाउट ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट वाटर सिक्योरिटी नहीं आ सकती, कोई सिटी की बात करे या कोई विलेज की बात करे। तो थोड़ा एक्सपीरियंस मैं कच्छ के रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस है वो आपके साथ शेयर करूंगी। कच्छ या गुजरात की अगर हम बात करें तो काफी सारे नेचुरल और एनवायरमेंटल लिमिटेशंस रहे हैं। जैसे पहले ही बताया गया कि गुजरात एरिड टू सेमी एरिड रीजन है और कच्छ खास करके ज्यादा उसमें एरिडिटी का स्केल ज्यादा है। रेनफॉल जो है वो रेगुलरली इरेगुलर है, मतलब काफी एरेटिक रेनफॉल है। ड्राउट फिनोमिनन हम रेगुलरली कच्छ में देखने को मिलते हैं। अगर 5 साल के रेनफॉल की बात करें तो एक साल ओवर ज्यादा रेनफॉल आता है, एक साल एवरेज रेनफॉल होता है, मीडियम या फिर बिलो एवरेज रेनफॉल होता है। तो अगर देखा जाए तो 3 से 5 साल का आयोजन हमें करना होता है अगर हम वाटर सिक्योरिटी प्लान की बात करें। ऐसा नहीं है कि हर साल हमें एक अमाउंट में क्वांटिटी में हमें रेन मिलेगा, वो यहाँ पे सीन नहीं है। सेकंड थिंग इज दैट कि जियोग्राफिकल लोकेशन जो है कच्छ का खास करके, कि अगर ग्राउंड वाटर के साथ सैलिनिटी का इश्यू जो है वो खुद ब खुद जुड़ जाता है। लाइक एक सिक्के की जो दो पहलू होते हैं उसके साथ अगर देखा जाए तो ग्राउंड वाटर है, दूसरी तरफ सैलिनिटी है। तो कच्छ में नॉर्थ में भी सैलिनिटी है, साउथ में भी सैलिनिटी है। तो ऐसे काफी कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल एंड जियो हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम में कच्छ बैठा हुआ है। तो वहां पे हमने कैसे ये इवॉल्व किया, जो भी बिफोर अटल भूजल योजना एंड इवन जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो पहले लॉन्च हुए हैं वो सारे ग्रोथ को देखते हुए लॉन्च हुए, जिसमें फोकस जो है वो सरफेस वाटर रहा है। कहीं ना कहीं शायद सोच में होगा कि हमें ग्राउंड वाटर रिसोर्स को स्ट्रेंथन करना है, लेकिन ग्राउंड वाटर रिलेटेड साइंस जो है, जियो हाइड्रोलॉजी, जो दिखता नहीं है उसको कोई देखता नहीं है, उस टाइप की सिचुएशन थी। तो वो कहीं पे नहीं आया, सिर्फ सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग उसी के रिलेटेड प्रोग्राम्स बनते गए। लेकिन वो एक्चुअली ग्राउंड वाटर को कहाँ अफेक्ट करता है, पॉजिटिव अफेक्ट करता है, नेगेटिव अफेक्ट करता है। मैं यहाँ पे नेगेटिव इसलिए बोल रही हूँ कि कितने ऐसे सारे केसेस हैं कि जहाँ पे ग्राउंड वाटर अच्छा था, वहां पे सिचुएशन बिगड़ गई है। तो ये जो एक ग्रोथ टाइप का जो अप्रोच था, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, अर्बनाइजेशन बढ़ा, सेंट्रलाइज सिस्टम कर दी गई, कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोकलाइज्ड लेवल पे ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉइटेशन बढ़ा। और जितनी भी ये सेंट्रलाइज सिस्टम रही है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर डिपेंडेंट ही रही है। कच्छ में जितनी भी GWSSB की वाटर सप्लाई स्कीम्स है वो अच्छे एक्वीफर में एक जगह पे बोरवेल करके 10-15 गांव को सप्लाई करते हैं। अगर उसकी सिचुएशन बिगड़ी तो फिर नया बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्राइम रिसोर्स है वो ग्राउंड वाटर ही रहा, लेकिन उसको कहीं पे प्लानिंग में या प्रोग्राम में कहीं पे उसका इतना अच्छे से उसका ग्राउंड वाटर सेंट्रिक कहीं पर प्लानिंग नहीं हुआ है। और जो भी अप्रोच इसके लिए अडॉप्ट किया गया वो टॉप डाउन अप्रोच था, कि सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे वो सारे प्लानिंग्स होते थे, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एलोकेशन एंड देन इम्प्लीमेंटेशन एट विलेज लेवल। तो जो एक्चुअल बेनिफिशरीज हैं उनका क्या प्रॉब्लम है, उनके सेंट्रिक लोकल जो सिचुएशन है उसके सेंट्रिक कहीं पे भी ये प्लानिंग नहीं हुआ है। तो ये एक कच्छ के संदर्भ में जो सिचुएशन थी जिससे हम फेस कर रहे थे, और इसको डील करने के लिए हमने जो अप्रोच लिया वो मैं योगेश भाई प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट या सो हमने कैसे PGW यहाँ पे कच्छ में इवॉल्व किया कि रीजनल कैरेक्टर क्या है। तो जैसे पहले बताया कि एरिडिटी एंड लो रेनफॉल है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो कच्छ में काफी एरिडिटी है, ड्राउट्स है, लेकिन अच्छा एक्वीफर भी है, काफी गुड पोटेंशियल एक्वीफर है, कोस्टल एक्वीफर है। भुज के इर्द गिर्द सेंट्रल कच्छ में भी एक भुज सैंडस्टोन एक अच्छा पोटेंशियल एक्वीफर है। लाइवलीहुड जो भी रहे हैं वो खास करके ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट रहे हैं, और ये जो लाइवलीहुड की जो डिमांड है वो मैच करने के लिए जो ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन हुआ उसमें काफी वाटर टेबल डिप्लीशन और वाटर क्वालिटी डिटीरियोरेशन हुआ। और यहाँ पे भी देखा जाए तो काफी
प्लानिंग या इम्प्लीमेंट जो भी हुआ, जो भी प्रोग्राम्स आए, उसमें जियो हाइड्रोलॉजी जो ग्राउंड वाटर का साइंस है उसका इंक्लूजन कहीं पे नहीं था। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे देखने को मिले। तो यहाँ से हमने जो अप्रोच लिया वो हमने रिवर्स अप्रोच लिया, लोकल टू रीजनल, बॉटम टू टॉप, जिसमें विलेज लेवल पे जियो हाइड्रोलॉजी स्टडी किया गया और उसके आधार पे लोकल स्पेसिफिक इश्यूज क्या है, लोकल डिमांड क्या है, लोकल लाइवलीहुड क्या है, लोकल एक्विफर्स क्या है, क्या रिचार्ज पोटेंशियल है, उसके आधार पे हमने जियो हाइड्रोलॉजी बेस्ड विलेज लेवल पे प्लानिंग किया। विदिन दैट ऑल्सो वी हैव फोकस्ड ऑन ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी, क्योंकि कई विलेजेस ऐसे भी होते हैं, कुछ एरिया ऐसे होते हैं कि ग्राउंड वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ डिमांड्स, लाइक फॉर लाइव स्टॉक और फॉर लाइव स्टॉक इन केस ऑफ फॉर्दर डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, बट ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हमारी प्राइम नीड है। तो वहां पे भी पहला फोकस जो है वो कैटल और ह्यूमन के लिए ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी पे दिया गया। उसके बाद हमने एक सेटअप किया कि सिंगल एक्विफर है, लाइक कोई एक विलेज के रिलेटेड रिस्ट्रिक्टेड एक्विफर है, एक्विफर इन द सेंस कि जो जिस रॉक से हम पानी ले रहे हैं उसका जो स्प्रेड है, अगर वो विलेज के रिस्ट्रिक्टेड है तो उसको हम सिंगल एक्विफर बोलते हैं। तो उसके लिए मैनेजमेंट सेट किया, लेकिन वहां पे भी इश्यू रिजॉल्व नहीं होता है, क्योंकि काफी सारे एक्विफर्स ऐसे हैं कि जो मल्टीपल विलेजेस में, मल्टीपल ब्लॉक्स में स्प्रेड हुए होते हैं। तो वो शेड एक्विफर के लिए हमने फिर पीजीडब्ल्यूएम कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया और एक क्लस्टर में हमने वो कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि कॉन्सेप्ट कितनी भी अच्छी हो लेकिन जब तक वो, लाइक अटल भूजल योजना भी एक कॉन्सेप्ट है जिसका पायलट 7 स्टेट में हो रहा है, तो जब वो इम्प्लीमेंट होगा तो कॉन्सेप्ट से कुछ हटके उसके फाइंडिंग्स आएंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, तब जो जाके एक वाइडर कम्युनिटी है वो उसको एक्सेप्ट करती है। तो ये हमने एक क्लस्टर में सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया और अभी उसका जो नॉलेज है वो हम स्केल अप कर रहे हैं फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड फॉर स्टेट। तो यहाँ पे जो अप्रोच लिया गया, जैसे योगेश भाई ने ये डायग्राम पहले रखा था कि वेल जो है वो हमारा फोकस है। सो मैनेजमेंट इंडिविजुअल लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिबल जो ग्राउंड वाटर एक्सेस करता है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक इंडिविजुअल है, तो उसको अगर मैनेज करते हैं तब जाके पूरा एक्विफर शेड पूरा का पूरा मैनेज होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये जो कॉन्सेप्ट है उसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, ये इसके लिए हमने पहले गुजरात स्टेट में, वी आर बेस्ड एट गुजरात, सो गुजरात में हमने पूरे स्टेट के 7 जियो हाइड्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड जोन्स किए, कि कच्छ एक जोन है, सौराष्ट्र है, कोस्टल सौराष्ट्र, नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात, सेंट्रल गुजरात, ऐसे ये जो है वो पॉलिटिकल बाउंड्री के हिसाब से नहीं किए, लेकिन जियो हाइड्रोलॉजिकल क्या सिचुएशन है, रेनफॉल क्या है, उसके आधार पे हमने ये पूरा उसका जोनेशन किया। और उस जोनेशन में से हमने कोस्टल कच्छ को सिलेक्ट किया। ये इसलिए कि कोस्टल कच्छ का कनकावती सैंडस्टोन एक्विफर, जो सेकंड डायग्राम जो है, जो ब्लू कलर का पूरा पैच दिखता है, दैट इज स्प्रेड ऑफ कनकावती सैंडस्टोन एक्विफर। ये इसलिए किया कि इस पे 250 विलेजेस हैं, टाउन्स भी हैं, इंडस्ट्रीज भी है, सो मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं। और सेकंड थिंग इज दैट कि कोस्टल एक्विफर है, सो यहाँ पे और एक ग्राउंड वाटर के साथ इश्यू इसमें जुड़ जाता है, दैट इज सी वाटर सैलिनिटी इंक्रीज। सी वाटर सैलिनिटी इंक्रीज एक ऐसा इश्यू है कि अगर उसमें अच्छे से समझ के कुछ इंटरवेंशन किया तो ठीक है, अदरवाइज आ बैल मुझे मार जैसी सिचुएशन होती है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हम उसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, अगर यहाँ पे हम कर सकते हैं तो वी कैन से दैट कि गुजरात या पूरे भारत में कहीं पे भी हम ये कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और उसी में से, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्प्रेड है 4000 स्क्वायर किलोमीटर का, तो कोई भी इंस्टीट्यूट के लिए उस वहां पे वो इम्प्लीमेंट करना पूरे अक्रॉस द एक्विफर इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो केमार्ट क्लस्टर हमने इसमें से सिलेक्ट किया, 19 विलेजेस का एक क्लस्टर, जिसमें 340 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और वहां पे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री और फिशिंग ये मेजर लाइवलीहुड है, और वहां पे हमने पीजीडब्ल्यूएम का कॉन्सेप्ट पूरा इम्प्लीमेंट किया। तो उसके ग्लिम्पसेस में आगे दिखाती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
सो यहाँ पे हमने अगर 2010 से 2000 बिफोर 2010 का वो सीन था कि जहाँ पे हम सिर्फ एक गांव की वाटर सिक्योरिटी प्लानिंग और या फिर सिंगल एक्विफर है उसके मैनेजमेंट की बात करते थे, लेकिन 2010 ऑनवर्ड्स हमने शेयर्ड एक्विफर पे ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है उस पे हम आ गए, जिसमें हमने ये कॉन्सेप्ट डेवलप की और पूरे एक्विफर को समझने की बात की कि पूरा एक्विफर स्प्रेड जो है कनकावती एक्विफर का वो क्या है और उसका सबसरफेस प्रोफाइलिंग क्या है। जो मैपिंग इज सरफेस स्प्रेड की बात नहीं है, वो तो पता है कि इतने एरिया में, लेकिन उसका सबसरफेस मैपिंग क्या है, प्रोफाइलिंग क्या है, वो हमने मैपिंग किया और काफी सारे मोर देन 1000 वेल्स हमने स्टडी किए। तो अगर उसको अटल भूजल योजना के साथ कोरिलेट करें तो दैट इज DLI 1। 2014 और 18 में हमने ये चांस मिला कि हम ये पूरे एक्विफर को हमने क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। बड़ा सा 4 ब्लॉक्स है, तो हर एक ब्लॉक में हमने 2-2 क्लस्टर लिए, जिसमें हमने कुछ डायलॉग्स फार्मर के साथ किए और ग्राउंड वाटर का क्या सीन रहा है, किस टाइप के अटेम्प्ट्स फार्मर कर रहे हैं या गवर्नमेंट कर रही है, वो हमने जानने की कोशिश की। देन 2016 और 15-16 ऑनवर्ड्स CSR ने इसमें हमें सपोर्ट किया, खास करके CGPL है, आइलैंड अफेयर्स, अदानी, उन्होंने सपोर्ट किया और ये हमने वहां पे इम्प्लीमेंट करना शुरू की, जिसका पहला स्टेप जो था वो वाटर सिक्योरिटी प्लान, जो अटल भूजल योजना में DLI 2 है। DLI 3 और 4 ये है कि जो प्लानिंग किया है वो प्लानिंग में मेजर 2 कंपोनेंट, दैट इज सप्लाई साइड मैनेजमेंट एंड अनदर इज डिमांड साइड मैनेजमेंट। अभी तक के जो प्रोग्राम्स आते थे वो यही था कि सप्लाई को बढ़ाओ, लेकिन नेचर की भी कुछ कैपेसिटी होती है। लाइक हमारा प्रिलिमिनरी रिसोर्स वाटर का क्या है, रेनफॉल है, वो एक लिमिट में आता है। उसके साथ ही उसको जो हम कंजर्व करते हैं या तो सरफेस पे करते हैं, थ्रू सरफेस वी कंजर्वेटिंग अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर में, तो उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। तो हर बार ये नहीं समझ सकते कि हमारी डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ाओ, कहीं ना कहीं हमें डिमांड को भी मैनेज करना है। तो इसका WSP का मेजर 2 कंपोनेंट है, डिमांड मैनेजमेंट एंड सप्लाई मैनेजमेंट। तो ये DLI 3 और 4 है अटल भूजल योजना में। तो ये हमने CGPL टाटा के साथ 19 गांव में डिमांड और सप्लाई पे काम किया। यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं, ऊपर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है, यहाँ पे मॉनिटरिंग भी है, यहाँ पे एक फिल्टर वेल बनाया है कि कैसे हम सप्लाई इसमें बढ़ा सकते हैं। एंड देन 2020 ऑनवर्ड्स जो इसके जो सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन रहे, इसकी जो सक्सेस स्टोरी है वो हम एक स्केल पे ले जा रहे हैं थ्रू अटल भूजल योजना इवन एंड पूरे कनकावती सैंडस्टोन एक्विफर पे। तो यहाँ पे हमने एक सेंटर एस्टेब्लिश किया है मांडवी ब्लॉक में, दैट इज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर PGWM। तो यहाँ पे एक साइलेंट फीचर अगर आप 2020 में देखें, ऊपर एक फोटोग्राफ है जिसमें सारे व्हाइट टी-शर्ट्स वाले ये भूजल जानकार है। तो यहाँ पे बेस में अगर फंडामेंटल एक फाउंडेशन देखा जाए तो वो भूजल जानकार है कि साइंस को हमें कम्युनिटी पे ट्रांसफर करना है। अगर उन्हीं की कैपेसिटी बढ़ेगी तो वही, क्योंकि लोकल रिसोर्स है तो लोकल सॉल्यूशन होगा। तो लोकली अगर साइंस नॉलेज वहां पे है तो वो वहां पे मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट। सो ये थोड़े प्रोग्राम हाइलाइट्स हैं कि हमने 19 गांव में वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाया। 8 भूजल जानकार जो अभी भी रेगुलर बेसिस पे इस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं और अटल भूजल में भी ये लोग बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सप्लाई साइड पे इंटरवेंशन हुआ जिसमें खास करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे फोकस था। आर्टिफिशियल रिचार्ज ट्यूबवेल है या एग्जिस्टिंग डिफंग वेल है उसको रिचार्ज करना है। डिमांड साइड मैनेजमेंट में क्रॉप चेंजिंग है, क्रॉप पैटर्न है, इरिगेशन प्रैक्टिसेस है, सॉइल हेल्थ को कैसे इंक्रीज करना है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, वो सारी चीजें डिमांड साइड मैनेजमेंट में हुई। एंड देन मॉनिटरिंग बाय कम्युनिटी के भूजल जानकार जो है वही ग्राउंड वाटर को मॉनिटर करते हैं और उसका जो इम्पैक्ट असेसमेंट जो हम करते हैं वो कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं कि जो भी इंटरवेंशन किया गया है वो आफ्टरऑल ग्राउंड वाटर पे क्या अफेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव अफेक्ट कर रहा है। तो उनका एक मोटिवेशन बढ़ता है कि हमें अच्छे से और सस्टेनेबल वे में हम हमारे रिसोर्स को मैनेज करें। तो यहाँ पे हमने आपने देखा होगा कि 2017-18 में नीचे एक डेफिसिट करके एक लिखा हुआ है कि ये पूरा जो अप्रोच है वो वाटर बैलेंस भी उसमें किया गया है कि क्या डिमांड है और क्या अवेलेबल सप्लाई है। तो जो 17-18 में जो इंटरवेंशन किया उसके बाद जो डेफिसिट वो 29.50 मिलियन क्यूबिक मीटर, देन उसको हम हर बार ट्रैक कर रहे हैं। तो अभी 1920 का देखें तो वो 24 पे आ गया है। तो इस तरीके से
काफी सारे विलेजेस में इंटरवेंशन से वाटर सप्लाई बढ़ा है और उसके साथ डिमांड पे भी काफी काम हुआ है। और अभी का जो स्टेज ये है कि लाइक VRTI है ऑर्गेनाइजेशन, वो ईस्टर्न वेस्टर्न एंड में जो एक्वीफर का जो पार्ट है वहां पे काम कर रही है। APPI भी इसमें काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है। तो थ्रू दिस, और जो डिफंक्ट वेल रिचार्ज की बात है, तो ऐसे कॉमन जो एजेंडाज है जो विलेज लेवल पे, फार्मर लेवल पे अपने खेत में वो कर सकते हैं, तो वो अभी वो कम्युनिटी खुद अपने लेवल पे उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम बना के लेके जा रही है। तो काफी ये पूरी जो टेक्नोलॉजी या पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अभी कम्युनिटी ऑन कॉन्सेप्ट बन गया है। एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, डिमांड साइड मैनेजमेंट की जहाँ हम बात कर रहे हैं, सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर को छोड़ के अगर जहाँ पे हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, वहां पे जो एक महत्वपूर्ण चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट्स कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। और उसमें जो ग्राउंड वाटर यूजर्स है उनका एक ग्रुप को बनाया जाता है, और उस ग्रुप को कैसे कलेक्टिवली ग्राउंड वाटर को यूज करना है, क्योंकि आप पूरे गांव का शायद कलेक्टिव वाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन ग्रुप वाइज कर सकते हो। तो मेल एज वेल एज फीमेल सबको लैंड ऑनर, लैंड लेस, सारे तरीके के जो ग्राउंड वाटर यूजर्स है, आज शायद लैंडलेस है लेकिन वो मालधारी हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री उसका मेन बिजनेस हो सकता है, तो उसको भी पानी की जरूरत है। विडो विमेन है जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है लेकिन उसको भी पानी की जरूरत तो रहती है। तो हाउ वी एंगेज दिस काइंड ऑफ द स्टेक होल्डर जिनका जमीन पर राइट्स नहीं है लेकिन पानी पे तो राइट्स है, तो उनको कैसे इसमें लाना चाहे, तो दैट ऑल्सो वी आर टेकिंग केयर। तो जहाँ लैंडलेस लोग हैं, फीमेल्स है, उनको भी कुछ न कुछ तरीके के, और हम कोशिश ऑफकोर्स कच्छ में नहीं हुआ है लेकिन सौराष्ट्र में एक जगह पे हम कर पाए जहाँ लैंडलेस महिलाएं हैं, और उनको हमने किचन गार्डन तक उनको एक पानी का सोर्स बनाने के लिए सपोर्ट किया है। वो अगर सोर्स उनके पास में है तो दे विल मैनेज ऑल्सो। तो कलेक्टिव सोर्स यूटिलाइजेशन, कलेक्टिव सोर्स मैनेजमेंट, सारी प्रक्रिया लाने के लिए डिमांड साइड पे जब करना है तो आपको छोटे छोटे ग्रुप में इसको कहीं डालने की जरूरत है, एंड दैट आल्सो बी इक्विटेबल मैनर में। या प्लीज। या थैंक यू योगेश भाई। सो इस तरीके से हम पूरे प्रोग्राम को लेके जा रहे हैं। ये थोड़े ग्लिम्पसेस है कि लाइक ये डिमांड साइड मैनेजमेंट पे कैसे यहाँ पे फॉर्डर जो यहाँ पे लोकल फॉर्डर जो करते थे, जो बहुत वाटर कंजप्शन उसमें था, तो उसको रिप्लेस किया गया दूसरे NB21 जो लो वाटर कंजप्शन वाला क्रॉप है। ये जो सोइंग प्रैक्टिसेस है उसमें भी बदलाव लाया गया कि सिस्टमेटिक वे से अगर सोइंग करते हैं तो काफी वाटर रिक्वायरमेंट कम कर सकते हैं। फ्लो मीटर लगाया है ताकि फार्मर खुद अपने क्रॉप की क्या रिक्वायरमेंट है और कितना कंजप्शन है उसके आधार पे वो डिसीजन ले सकता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक रिचार्ज बोरवेल बनाया गया है कि कैसे सरफेस पे जो हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, अगर एक्वीफर डीपर लेवल पे है तो काफी उसको नेचुरल रिचार्ज में उसको काफी टाइम जाता है, उसके साथ काफी वाटर लॉसेस भी होते हैं। तो उसको कैसे डीपर लेवल पे आर्टिफिशियली उसको रिचार्ज किया जाए ताकि एक इफेक्टिव रिचार्ज मेथड से ग्राउंड वाटर सिनेरियो हम चेंज कर सकते हैं। कोस्टल लेवल पे हम रिवर बेड रिचार्ज करते हैं। उसी के साथ जो बड़ा कंपोनेंट इसके साथ जुड़ा है दैट इज टेक्नोलॉजी का, जो IIT गांधीनगर भी इसमें और विंड फाउंडेशन उसमें काफी सपोर्ट कर रहे हैं। एक सिंपल सी बात मैं बताऊं कि लाइक सॉइल मॉइस्चर मीटर है, तो जैसे फार्मर ऐसे ही अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज से वो इरिगेशन कर देता है, लेकिन जबकि वो क्रॉप को अगर जरूरत नहीं भी है तो भी वो इरिगेट कर देती है फील्ड्स को। तो अगर सॉइल मॉइस्चर मीटर है तो उसको पता उस मीटर से पता चलता है कि कितना मॉइस्चर अभी भी अवेलेबल है विद इन द सॉइल, अभी क्रॉप को रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, तो उसके आधार पे वो इरिगेट करते हैं फील्ड्स को। तो अगर एक फार्म में 5 में से 4 इरिगेशन में अगर प्रोडक्शन आ जाता है, एक भी इरिगेशन बचता है, तो अगर उसको एरिया के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो बहुत ही बड़ा वाटर कंजर्वेशन हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो काफी टेक्नोलॉजी से वेदर स्टेशन है जिसको फोरकास्टिंग मिलता है कि कल बारिश होने वाली है, अगर मानसून की सीजन है तो बारिश होने वाली है कि नहीं, तो अगले दिन अगर वो इरिगेट करने वाले हैं तो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, डिमांड साइड मैनेजमेंट, सप्लाई साइड मैनेजमेंट और सबका मॉनिटरिंग करते हुए हम इस प्रोग्राम को आगे ले गए हैं और अभी इसको हम एक स्केल अप पे मोड में हैं। नेक्स्ट। या सो जो DLI 5 की अगर बात करें अटल भूजल के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम उसको
जब प्रोग्राम की शुरुआत हुई 2015 में, तब से इसको ग्राउंड वाटर को मॉनिटर कर रहे हैं कि ग्रिड बेस 2x2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक मॉनिटरिंग वेल हमने डिफाइन किया है, उसको रेगुलर हम बाय मंथली मॉनिटर करते हैं। अगर इसका देखा जाए तो ये ऊपर की जो रो है उसमें स्टैटिक वाटर टेबल है, नीचे का TDS है। अगर मैं ज्यादा इसके डिटेलिंग में ना जाए, सिर्फ कलर कोड को भी देखें तो रेड जो कलर है वो थ्रेटनिंग है, लाइक उसमें सिचुएशन खराब है। अगर ब्लूइश होता जाता है दैट मींस इट इज इन अंडर इंप्रूविंग सिचुएशन। दोनों में देखा जाए तो 2018 से लेके 2020 तक काफी सिचुएशन इंप्रूव हुई है। तो ये इस टाइप का जो इम्पैक्ट असेसमेंट है वो हम कम्युनिटी के साथ ईयरली एक बार सेमिनार करके शेयर करते हैं, ताकि दूसरे जो विलेजेस हैं उनके लोग भी मोटिवेट होते हैं और अपने लेवल पे कुछ इंटरवेंशन वो कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, एक गांव में RSS की टीम ने 2 रिचार्ज बोरवेल बनाए। तो अगर ये इस टाइप की इम्पैक्ट असेसमेंट, इस टाइप का सिनेरियो अगर हम कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं, तो काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं कि चाहे उनका एजेंडा कुछ भी हो, रीजनल हो या कुछ एजुकेशन बेस्ड हो या कुछ भी हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं वाटर सिक्योरिटी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। डिफंग वेल रिचार्ज का है कि जो फार्मर खुद कर सकता है, तो काफी सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिसको अभी हमारा एक मैपिंग भी चल रहा है कि इस प्रोसेस से मोटिवेट होके कहाँ पे किस टाइप के काम हुए हैं, तो उसको हम मैप कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज के काफी सारे इंटरवेंशन फार्मर के द्वारा हुए हैं। नेक्स्ट। तो अभी एक्सपांशन की बात करें तो जो यहाँ पे ब्लू कलर का जो क्लस्टर दिखाया गया है, जो कैमार्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे जहां से हमने डेमोन्स्ट्रेशन की शुरुआत की थी, और ये जो पूरा पैच है वो पूरा एक्वीफर का है। तो उसमें देखा जाए तो अबरासा की तरफ VRTI है, APPI है, वो वहाँ पे काफी सारा काम कर रही है। ग्लोबल कच्छ करके जो एक इंस्टीट्यूट है जो पहले महाराष्ट्र में काम किया है उन्होंने वर्ली में, अभी वो कच्छ में कर रहे हैं। तो बाकी के विलेजेस जो है वो ग्लोबल कच्छ उसमें काम कर रही है। मांडवी ब्लॉक में अटल भूजल योजना में काफी विलेजेस है, उसके साथ ग्लोबल कच्छ भी है। और ये जो बाकी का मुंद्रा और अंजार जो ब्लॉक है वो अभी भी छूट रहा है कि जिसमें हमें और पार्टनरशिप की जरूरत पड़ेगी। ये दिखाने का कारण ये है, कच्छ को नहीं दिखा इस एक्वीफर को, क्योंकि एक्वीफर एक मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक पोर्ट है पूरे 250 विलेजेस के लिए। तो अगर पूरा हर एक विलेज लेवल पे अगर ये PGWM नहीं होगा तो ईस्टर्न साइड पे जितने भी, वेस्टर्न साइड पे जितने भी एफर्ट्स किए जाएंगे वो अभी भी वो कंप्लीट नहीं रहेगा। तो हम मुंद्रा में भी अदानी इसमें आगे आने की सोच रही है, तो मुंद्रा में अदानी इसके साथ जुड़ेंगे। तो इस तरीके से पूरे एक्वीफर में हम ये PGWM अप्रोच एग्जीक्यूट कर पाएंगे। यहाँ पे एक चीज ये है कि ये पार्टनरशिप मॉडल है, कोई भी इंस्टीट्यूट अपने एक के लेवल पे ये पूरा प्रोग्राम नहीं कर सकती। अटल भूजल की बात करें तो अटल भूजल योजना में इस टाइप के PGWM के जो कुछ नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल है, अगर वो उसको इंक्लूजन किया जाता है, कुछ हद तक है, कुछ हम और ऐड करने की सोच रहे हैं थ्रू एडवोकेसी। तो ये गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ये कैसे है कि जो एट स्केल काम कर सकते हैं थ्रू देयर सिस्टम्स। ये हम एक्सपेंशन की यहाँ पे बात करें। अटल भूजल योजना में आगे की जो सीन है वो आई थिंक योगेश भाई आप या अनीता जो भी शेड्यूल के हिसाब से प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू सेजिना। यहाँ तक की जो जर्नी रही थी उसमें दो महत्वपूर्ण बात थी, एक तो पार्टनरशिप एंड पार्टिसिपेशन। तो आपने देखा होगा कि हर बार सेजिना ने कुछ शब्द बोले थे जिसमें इंडस्ट्रीज की बात की गई है, गवर्नमेंट की बात की है, लोकल स्टेक होल्डर्स की बात की। तो मतलब एक इंडिविजुअल भूजल जानकार से लेके ग्राउंड वाटर यूजर ग्रुप से लेके ग्राम पंचायत, दे आर द यूजर एंड पे जो पार्टनर्स है या पार्टिसिपेंट्स है। एंड अगर नॉलेज लेवल पे देखा जाए तो कई साइंटिफिक नॉलेज को भी यहाँ लाने की बात है। तो मतलब नॉलेज गैप को पूरी तरीके से ब्रीच करने का कई प्रयास है, और साथ साथ में किस तरीके से ग्राउंड वाटर में इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जैसे इसकी पहले वाली जो स्लाइड में वाटर क्वालिटी, वाटर लेवल के जो नक्शे दिखाए थे, तो अटल भूजल योजना जब से हमारे पास आई है, मतलब 2020 से आई है, तो दोस आर द बेस फॉर द अटल भूजल योजना के। इसमें हम कितना इम्प्रूवमेंट करेंगे अटल भूजल योजना के इम्प्लीमेंटेशन के साथ। तो आगे की जो बात है मैं नीता को बोलूंगा कि अटल भूजल योजना, क्योंकि अटल भूजल इस पूरी प्रोसेस में पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की जर्नी में
अटल भूजल योजना एज ए फॉर्मल अटल भूजल योजना से वेरी जुवेनाइल स्टेज। तो अभी सिर्फ दूसरे DLI पे हम आए हैं, बट हमारा जो सारा लर्निंग है वो कैसे अटल भूजल योजना में जा रहा है, किस तरीके से वो ग्राउंड पे जो टीम है, ऑफ कोर्स अभी ये जो पूरी प्रोसेस आपने देखी उसमें हो सकता है कि मैंने और सजीना जैसे लोगों ने ग्राउंड ग्रासरूट लेवल पे काम किया था, बट नाउ वी आर ऑन द विड्रोवल साइड, और ग्रासरूट लेवल के लोग इस नॉलेज को अभी कैसे परस्यू कर रहे हैं। तो उसकी बात में रिक्वेस्ट करूंगा नीता को कि नीता उसको आगे ले जाए। नीता प्लीज। थैंक यू योगेश भाई। अच्छा, अभी मैं ये जो अटल भूजल योजना का एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहूंगी। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके ओके। तो हम अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं वो 2 डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, कच्छ में और महसाणा में। और टोटल 4 ब्लॉक हैं और 171 विलेजेस हैं जहाँ पे हम ये अटल भूजल योजना का काम कर रहे हैं। उसमें हमारा जो प्रोसेस रहता है वो है पूरा ग्राम पंचायत के साथ मीटिंग करते हैं। ग्राम पंचायत के साथ मीटिंग करके ग्राम सभा बुलाते हैं और उसमें ये जो पूरा अटल भूजल योजना है वो क्या है वो डिटेल में समझाते हैं लोगों को। और उसके बाद ये जो PGWMC कमेटी है, पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट कमेटी, उसका फॉर्मेशन होता है। और वो फॉर्मेशन होने के बाद क्रॉप वाटर बजटिंग, यानी कि क्यों हमें ये करना चाहिए, और वाटर बजट का पूरा एक एक्सरसाइज करते हैं। और उसके साथ साथ CRP, जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन रहता है एक, जो हमारे बाद जो गांव का पूरा डिटेल लेना होता है, उसके प्रोसेस के लिए हम एक CRP भी सिलेक्ट करते हैं उन्हीं के साथ रह के, जो उसके बाद का विलेज वाइज डेटा कलेक्शन करने वाला होता है। और जो क्रॉप वाटर बजटिंग की बात की कि लोगों को पता होना चाहिए कि हम पानी कितना यूज कर रहे हैं और कितना यूज करना चाहिए। जैसे सेजिना जी ने बात की थी कि हमने फ्लो मीटर लगाया है, तो फ्लो मीटर का क्या महत्व है वो लोग समझेंगे तभी उनको पता चलेगा कि हमें इरिगेशन में कितना पानी देना चाहिए था और हम कितना दे चुके हैं, यानी कितना वेस्ट कर चुके हैं। तो वो अवेयरनेस लाने के लिए हम क्रॉप वाटर बजटिंग का एक पूरा प्रोसेस है वो उनके साथ हम करते हैं। और वो करने के बाद हम एक्यूफर मैपिंग करते हैं गांव में, विलेज वाइज उनका क्या एक्यूफर है और उसमें पानी कितना स्टोर होता है और उनको कितना यूज करना चाहिए, वो पूरा प्रोसेस हम उनके साथ करते हैं। उसके साथ साथ वेल इन्वेंट्री भी करते हैं, सरफेस इन्वेंट्री और वेल इन्वेंट्री उनके साथ करते हैं, ताकि उनको पता चले कि हमारे पास पानी कितना है और हमें कितना यूज करना है। ये सब प्रोसेस करने के बाद हम वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाते हैं विलेज के लोगों के साथ, और फिर वो MIS पोर्टल पे अपलोड करते हैं। योगेश भाई, अगर मैं कुछ रह जाता है मेरे से तो आप बताइएगा, हाँ प्लीज। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज आप आगे मैडम, मैं छूट जाएगा बोलूंगा, बिल्कुल प्लीज। जी जी। तो हमारे जैसे हमारे यहाँ पे 3 टायर पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ब्लॉक पंचायत और विलेज पंचायत। तो हमने ये पूरा प्रोसेस भी उसी हिसाब से किया है। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर सर और DDO सर के साथ रह के एक पूरा वर्कशॉप, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हर एक ब्लॉक के TDO आए थे और उनके साथ रह के पूरा ये योजना का अवेयरनेस, और वो उनको हम हमारे साथ हम उनके साथ रह के हमें पूरा क्या प्रोसेस ब्लॉक लेवल पे करना है उसके ऊपर पूरा डिस्कशन हुआ था, जिसमें पानी को लेके जितने भी ऑफिसर्स हैं वाटर को लेके, वो सब भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग में आए थे और उनके साथ बैठ के पूरा ये डिस्कशन हुआ था। फिर वहीं पे हमने हर एक ब्लॉक लेवल पे जो TDO सर होते हैं उनको रिक्वेस्ट की थी कि ऐसा ही एक वर्कशॉप ब्लॉक लेवल पे होना चाहिए, ताकि ब्लॉक पे जितने भी तलाटी, सरपंच और वो पानी को लेके, जैसे पानी पुरवठा अधिकारी है, तो वहाँ के जो ब्लॉक लेवल पे है उन सबको भी ये अवेयरनेस आए कि अटल भूजल योजना क्या है और उसमें क्या क्या हम काम करने वाले हैं और उसकी क्या इफेक्ट होने वाली है। तो वैसे ही ब्लॉक लेवल पे मीटिंग करने के बाद
हमने ब्लॉक लेवल पे जो मीटिंग किया था तब पार्टिसिपेशन में थे ये तलाटी और सरपंच सभी। तो क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि ये योजना क्या है और कैसे उनको आगे गांव में उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि हम ये चाहते थे कि इसमें कम्युनिटी का जो है पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए और कम्युनिटी खुद ओन करे कि ये हमारा वाटर सिक्योरिटी प्लान बनने वाला है। क्योंकि अब तक जैसे आप सबको एक्सपीरियंस होगा और सेजिना जी ने भी आगे बताया था कि ऊपर से योजना बन के आती थी और नीचे ग्रास रूट पे उसका अब इम्प्लीमेंटेशन होता था। तो ये एक ऐसी योजना है जिसमें गांव को खुद का एक जड़ सुरक्षा आयोजन यानी कि वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाना है। तो वो खुद का उसके ऊपर ओनरशिप कैसे आएगा, तो वो पूरा प्रोसेस करने के लिए हमने हर एक गांव में एक पूरा मीटिंग किया था, जो मैंने आगे की स्लाइड में भी बताया कि ग्राम पंचायत के साथ मिलके ग्राम सभा में ये पूरा प्रोसेस हम करते थे। तो वैसे ही ग्राम पंचायत में करने के बाद एक एक ग्रुप के साथ, जैसे योगेश भाई बोल रहे थे कि क्योंकि ये एक दो लोगों का नहीं है, ये पूरे समुदाय का प्रॉब्लम आता है जड़ सुरक्षा आयोजन में। तो एक एक व्यक्ति को नहीं समझा के एक एक ग्रुप को, जैसे किसानों का ग्रुप बनाया तो उनको समझाया, बहनों के ग्रुप को समझाया, फिर पशुपालक हैं तो उनके ग्रुप के साथ मीटिंग की और उनको समझाया कि भाई हमें क्या करना है, कैसे पानी यूज करना है, कैसे कर सकते हैं। तो हर एक लेवल पे एक एक ग्रुप के साथ रह के ऐसी एक्टिविटीज की है और ऐसी ट्रेनिंग्स दे के हम ये पूरा पीजीडब्ल्यूएम क्या है, क्यों हमें ये सहभागीदारी के साथ करना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट को उनको समझाया ताकि वो खुद ऑन करते हैं कि हाँ ये जो जड़ सुरक्षा आयोजन बन रहा है वो हमारा है। और उसके बाद हम सीआरपी के साथ रह के फील्ड में डेटा कलेक्शन का उनको ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कौन सा एक्यूफर है और उसमें पानी कितना स्टोर होता है। तो वो भी किया है। फिर क्रॉप वाटर बजटिंग के लिए भी काफी सारी एक्सरसाइज हमने की है और एंड में वही कम्युनिटी जो है वो पूरा वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाती है, पूरा समझने के बाद कि हाँ हमें इस जगह पे है जो बंद बोर है तो उसको हम रिचार्ज करेंगे तो इतने बोर को उसका फायदा होने वाला है। नदी में इस जगह पे अगर हम कुआं बना रिचार्ज वेल बनाते हैं फिल्टर वेल, तो हमें इतने बोर को इतना पानी हमारे में जाएगा। फिर कितने लोग हैं जिनको ड्रिप करना चाहिए, तो उसका भी डिसीजन उसी मीटिंग में होता है कि हमारे गांव में से इतने लोग जो है वो उनकी आधी जमीन में ड्रिप करेंगे। तो ये सब डिसीजन जो है वो वाटर सिक्योरिटी प्लान की जब प्रोसेस करते हैं उस टाइम पे लिए जाते हैं। और दूसरा एक जो है कि हमने जो तय किया हुआ था कि जो पीजीडब्ल्यूएमसी कमेटी जो बनाएगी वाटर सिक्योरिटी प्लान के लिए, उसमें 50% बहनें और 50% भाई कंपलसरी होने चाहिए और उसमें भी हर समुदाय के लोग होने चाहिए। तो ऐसी काफी सारी चीजें थी जो लोगों की ओनरशिप बाहर आए उसके लिए हमने की थी। आगे योगेश भाई आप भी कुछ रह जाता है तो बताएंगे प्लीज। यस, थैंक यू नीता, थैंक यू सजीना। जैसे मतलब कैसे एक अनुभव खड़ा हुआ और अनुभव को हम एम्बेड करने का प्रयास कर रहे हैं अटल भूजल योजना में, तो उसकी जो हमें जो एक तो दो तीन जो की लर्निंग हमारे रहे, एक तो ये रहा कि कम्युनिटी अपने साइंस और ग्राउंड वाटर जैसे जो रिसोर्स है उसके बिहेवियर को अच्छी से समझ सकती है और उसकी समझ को कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से इसको लाना चाहिए, तो वो उसके साथ कोई नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। एंड जब कोई भी डिसीजन है, यहाँ पे बहुत क्लियर है कि कोई भी डिसीजन है इसको पार्टिसिपेटरी वे में लेना है, या तो ग्रुप के साथ लेना है या पंचायत के साथ लेना है, बट डिसीजन शुड नॉट बी इम्पोज्ड, डिसीजन शुड कम फ्रॉम द कम्युनिटी। और उसको हम कैसे फैसिलिटेट करके पूरे प्लानिंग में ला सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लर्निंग रहा। और कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन में इक्विटी को हो सके उतना, ऐसे जैसे अभी नीता ने बताया, लेकिन अभी रिसेंटली वी आर स्ट्रगलिंग इन 2 विलेजेस। 2 गांव में लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ महिलाएं नहीं है, रिक्वेस्ट टू गो देयर। उन्होंने बोला कि उस गांव को हम ड्रॉप कर देंगे, इवन गवर्नमेंट प्रेशर करेगी तो भी हम वहां पे जाके काम नहीं करेंगे। तो दैट काइंड ऑफ स्टैंड वी हैव टू टेक समवेयर, तभी जाके इसको हम पार्टिसिपेशन को सही मायना दे पाएगा। दूसरा जो अहम मुद्दा जो लगा कि
CRP जो अटल भूजल योजना में they are calling it CRP, उसके बाद they become a frontline worker. तो हम सोचते हैं कि CRP should convert it to भूजल जानता, so that after the program execution या program duration खत्म होने के बाद वो he or she stay in the village और वो पूरे गांव को इस तरीके से नॉलेज को कंट्रीब्यूट करता रहे। वाटर सिक्योरिटी प्लान जो है हर एक गांव में जो बनना है, इट शुड बी बेस्ड फॉर द कन्वर्जेंस, और वो हर पंचायत को एम्पावर करता है आने वाले समय में जो भी रिसोर्सेज गांव में आते हैं उसको कैसे यूज करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे जो पुराने विलेजेस थे वहां पे तो सरपंच ने एक लेवल का एग्जीक्यूशन कर दिया है, नाउ दे आर कन्वर्टिंग इनटू द नेक्स्ट लेवल वाटर सिक्योरिटी प्लान, जिसमें हो सकता है कि प्रैक्टिस बिहेवियर की बात ज्यादा आए। और ऑलरेडी बताया गया कि लोकल जो सॉल्यूशन है वो लोकल स्पेसिफिक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उसी कॉन्टेक्स्ट में सॉल्यूशन को डिजाइन किए गए हैं। तो दिस आर द मेन जो लर्निंग्स हमारे रहे थे जिसको हम स्केल अप की ओर लेके जा रहे हैं। जो हमारा पहला प्रश्न था, भोजिया जी ने जब ये टॉक की शुरुआत की और बताया कि क्या अटल भूजल योजना जो है वो ग्राउंड वाटर की लाइफ को लीज कर सकती है क्या नहीं, बट लुकिंग टुवर्ड्स आवर एंटायर एक्सपीरियंस मैं कॉन्फिडेंस से बोलूंगा यस इट कैन, वो कर सकती है, लेकिन कुछ शर्तें हैं और वो शर्तों को अगर हम बांधछोड़ नहीं करें, कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करें तो ये डेफिनेटली भारत का ग्राउंड वाटर का सिनेरियो आने वाले 4-5 साल में बदल सकती है। इसमें एक जैसे बताया जिसको हम बहुत अहमियत दे रहे हैं, इसमें इक्विटी, जेंडर, कास्ट, इकोनॉमी, रिसोर्स होल्ड नहीं है, सब लोगों का इक्विटी से पार्टिसिपेशन में उसको आना बहुत जरूरी है और वो नॉन निगोशिएबल पैरामीटर होना चाहिए। और दूसरा लोकल नॉलेज और नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करना है अप टू नेक्स्ट जनरेशन तक एंड वो मोमेंटम चलते रहना, तो वो एक इसका सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिसीजन लेना सबको अच्छा लगता है, डिसीजन थोपना अच्छा लगता है, बट कम्युनिटी का डिसीजन को लेना, कम्युनिटी को मोटिवेट करके डिसीजन लेने के लिए उसको एम्पावर करना, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो भी तो मतलब इसमें पूरे डिसीजन है टू कम फ्रॉम द कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट है, एनजीओ है या कोई भी पूरे प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में एग्जीक्यूशन के जिम्मेदार है, दे शुड प्ले द रोल ऑफ फैसिलिटेशन नॉट इम्प्लीमेंटेशन एज ए इम्प्लीमेंटर। तो उनका एक फैसिलिटेशन का रोल ही होना चाहिए, वो हमें लग रहा है। अटल भूजल योजना में इसको सिर्फ फैसिलिटेशन की तरह ही लिया गया है। साइंस को बहुत ही सिंप्लीफाई करके कम्युनिटी तक ले जाना है एंड लोकल सॉल्यूशन इसमें होने चाहिए। पूरी प्रक्रिया है वो साइक्लिक है, ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम खत्म हो गया तो प्रोसेस खत्म हो गई। तो इस प्रक्रिया को अगर हम इस तरीके से देखें तो ये मतलब ये एक साइकिल को शुरुआत करने के लिए है, बट इट शुड नॉट एंड विद द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो इसको मतलब हर बार कैसे आगे ले जाना है वो सिस्टम वहां पे एस्टेब्लिश करनी है और सारे स्टेक होल्डर जब तक ये बिहेवियर में नहीं आते तब तक जो भी फैसिलिटेटर है उसको उसके साथ हैंड होल्ड करना है। तो ये कुछ चीजें जो है अगर हम चीजों को स्ट्रिक्टली परस्यू करेंगे प्रोग्राम के अंतर्गत तो आई डोंट थिंक सो कि अटल भूजल योजना जो है ग्राउंड वाटर की लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो दैट्स आवर ग्रासरूट लेवल एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, दैट्स आवर कॉन्फिडेंस आल्सो। I think we are ending here. Thanks. Any questions? Thank you. Yeah, if you can stop sharing the screen. Thank you very much, Yogesh ji and Sazina Behan and Neeta Behan. I think it was a very, very comprehensive presentation. बहुत ही बेहतरीन presentation. आपका ये presentation देखकर कहीं ना कहीं मुझे भी यकीन आने लगा है कि अटल भूजल योजना can definitely give a new lease of life to the groundwater. Yeah, you clearly mentioned कि शर्तें, वो शर्तें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। स्कीम्स जो होती हैं वो एक पहला स्टेप होता है, किसी भी चीज का एक इंटेंट शो करता है। स्कीम्स एक्चुअली शो कि देयर इज एन इंटेंशन कि हम ग्राउंड वाटर जो हमारा स्ट्रेस्ड है, जो डिप्लीशन हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर का, उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। सो स्कीम्स एक्चुअली प्रोबेबली आर रिजल्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम। तो लेकिन स्कीम अपने आप में कामयाब कभी नहीं हो सकती है जब तक कि उसका एक अच्छा गवर्नेंस प्रोसेस
ना हो उस स्कीम को कामयाब करने के लिए। जहां तक हमने आपकी टाइमलाइंस को देखा तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि परहैप्स आप लोगों के जैसी अच्छी इनिशिएटिव्स जो हैं उनकी लर्निंग्स जो थी वो हमारे अटल भूजल योजना को उस योजना को बनाने में प्रॉबेबली इनपुट्स वहीं से आए थे और उन्हीं आप लोगों की जो एफर्ट्स थी, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं अर्ली 2000 से ये काम शुरू कर दिया था। अटल भूजल योजना तो 2019 में आई। सो बहुत सारी चीजें जो आप ऑलरेडी कर रहे थे वो अभी अटल भूजल योजना में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो वो डेफिनेटली एक बहुत ही मैं क्या कहूँ कि इस तरह की स्कीम्स जो हैं वो कामयाब। मैं इनफैक्ट पॉलिसी मेकर्स से तो रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अक्रॉस इंडिया कंडक्ट कराया जाए, लोगों में ये जागरूकता फैलाई जाए, क्योंकि आज भी मैं देखती हूँ बॉटम अप अप्रोच बहुत ज्यादा कम है, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि प्रॉब्लम्स लोकल हैं तो सॉल्यूशंस भी लोकल हैं, सॉल्यूशंस are with the people and we need to definitely engage them from the inception. So that's very very good point that you have highlighted. जो पॉइंट आपने इनविजिबल वाटर से जिससे आपने शुरुआत करी कि इनविजिबल जो चीजें होती हैं तो उसको कहीं ना कहीं चूंकि वो दिखाई नहीं देती हैं तो हम समझ भी नहीं पाते हैं, एस्टिमेट भी नहीं कर पाते हम उसका कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। और ग्राउंड वाटर के केस में तो ये था कि कभी भी कोई ऐसा लीगल फ्रेमवर्क से वो गवर्न ही नहीं हो रही थी, तो लोग ये सोचते थे हमारी जमीन है तो हमारा पानी है। और आज आप उसको अपने सोशल और साइंटिफिक इनिशिएटिव्स दोनों के कॉम्बिनेशन, आई वुड से सोशल, इकोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, all kind, everything combined, such a beautiful integrated approach that you have presented. I'm honestly very very impressed and very very inspiring story. I have got long notes, I can just go on and on, but I'll open it up for questions now. And if Dr. Shiv Rawat sir, if you are around, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी क्योंकि आप जो हैं वो, सर ने ऑलरेडी अपने आप को अनम्यूट कर लिया है। सर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं हरियाणा वाटर अथॉरिटी डिपार्टमेंट में, तो और हमारे डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के वाटर प्लानिंग कमेटी को लीड भी कर रहे हैं वो। सर मैं आपके थॉट्स जानना चाहूंगी बिकॉज गुड़गांव इन इटसेल्फ, द होल ऑफ लाइक हरियाणा ओवरऑल इज इन ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड वाटर. What are your first thoughts to this presentation? Good evening to everyone. Good evening, sir. First of all, congratulations to Mr. Yogesh and his team. They have worked on the ground, and of course, it's a learning experience. But I was going through this presentation. So from the 2017 to 2020, the water deficit had come down from 29 to 25, if I am right, as per your slides. That is for 19 villages. So do Mr. Yogesh and his team think that such a quantum of deficit reduction from 29 to 24 will it will suffice to control the groundwater deficits? डॉक्टर रावत, इट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन. एक्चुअली ये जो हमने डेफिसिट के बारे में अभी बताया था वो 3 साल में जो एग्जीक्यूशन हुआ है और उसमें जो कुछ एक्टिविटी जो डिमोन्स्ट्रेट हुई थी उसी का परिणाम है. उसके बाद का एक्चुअली ये स्लाइड थोड़ा पुराना भी है, एक्चुअली नया हम नहीं कर पाए थे. बट इसके बाद क्या हुआ है, 2020 ऑनवर्ड बहुत सारे इंटरवेंशन है वो कम्युनिटी ने खुद करना शुरू किया है. जैसे ऑलरेडी सजीना हैज मेंशन के, अगर मैं आपको बताऊं कि 2020 तक इसमें 15 डिफंक्ट बोरवेल रिचार्ज हुए थे, हाँ, लेकिन उसके बाद 2021 में मोर देन 500 डिफंक्ट बोर रिचार्ज हो चुके हैं. हमारे पास जो रिसोर्सेज सीएसआर के जरिए अवेलेबल था उसमें कुछ 7 या 8 रिचार्ज ट्यूबवेल बने थे, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों ने रिचार्ज ट्यूबवेल बनाना शुरू किया है. तो ये जो है डेमोन्स्ट्रेशन फेज का डेफिसिट है, एज द टाइम इज गोइंग और मोर एंड मोर, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो डेफिसिट का कम होने का जो स्पेस है ज्यादा स्पीड में जा रहा है. तो ये प्रक्रिया है, इसीलिए उसमें आंकड़े थोड़े कम दिख रहे थे. बट
अभी हम देखा जाए तो we have achieved more than 70% deficit in this area. Actually, ma'am, Yeah. I'm asking this question because I am the regional officer for 5 districts of Gurgaon, Haryana, in the south of Haryana, which are facing acute water stress or over exploitation, whatever you call that. So while going through the schemes prepared by the DIPs in these areas, when I was scrutinizing, I was finding they are getting the figures very 0.001 MCM or something like that. So such schemes, of course, it's a good initiative, but to solve the problem of, because in the South Haryana, the water level has gone even to 70 meters, 60 meters in some villages. This is the condition. So they were calculating all the recharging tube wells, abandoned wells, like that. Even that, even if they do all these things, the water level is not, groundwater is not going to be, the difference and the deficit will be very marginal. So something very innovative. Of course, you have done a very good job, and it's a practically you have done already. And Haryana is facing the challenge because we have just now started this Atal Bhujal in Haryana. So even the MIS system, the portal, the Atal Bhujal portal is there. There are certain challenges in that also, because that is in that MIS there is no provision for canal water. So I have communicated to the national जो level पर जो भी इनका NPMU है, but still we are facing a lot of challenges. Yes, you are And- right. And second thing, in the MI portal, they have put up the data of Central Groundwater Board. So when we are working on the village, then that groundwater, Central Groundwater water data is not for the village specific. It is for the block or for the district. So that is creating certain challenges in the Atal Bhujal at the village level, the WSPs. Yes, you are right. You are right. और इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि localized data को हम कैसे इसमें include करें. Fortunately, we are fortunate enough that we have incorporated our own monitoring data in MIS पे, क्योंकि at aquifer you have seen we are monitoring it since 2014. तो 14 से हमारे पास प्राइमरी इसका डेटा है. सेकंड थिंग जो मैं आपको बताना भूल गया, इस एक्विफर को अगर पूरा सैचुरेट करना है, पूरा वाटर बैलेंस करना है, तो हमने उसका हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हमने ये थंब रूल बनाया कि सो एवरी 400 मीटर बाय 400 मीटर पे एक रिचार्ज स्ट्रक्चर का एक इंटरवेंशन होना चाहिए PGWM का, तब जाके ये एक्विफर में पूरा मैनेजमेंट होगा. तो दैट 400 मीटर बाय 400 मीटर केम थ्रू द एक्विफर प्रॉपर्टी. इसका जो हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी है उसके आधार पर ये थंब रूल आया है, और थंब रूल को हम परस्यू कर रहे हैं, उसको हम कहीं ना कहीं प्लानिंग के साथ जोड़ रहे हैं. तो जिसमें मान लो कि कई जगह पे रिचार्ज ट्यूबवेल आ गया, कोई जगह पे सिंपल सा फार्म पॉन्ड आ गया, बट बेस्ड ऑन द लोकल रिचार्ज एरिया में, डिस्चार्ज एरिया में, तो सारे प्रॉपर्टीज इसमें कहीं सिंप्लीफाई करके प्लानिंग में डाल दिया है. Actually, Dr. Rawat, I'll just come back to you. Just give me 2 minutes, huh? Because there are more questions for you also, Dr. Rawat. So I'll just come back to you. Dhaval Joshi has a question. And Dhaval, would you like to unmute and speak yourself? Want to know about the local knowledge, right? Yeah. Hello. Am I audible? Yes, you are, but I think not too clear. Am I audible? Yes, you are. Please. Huh? Okay. Okay. So basically, this links to the earlier discussion that Dr. Rawat was sharing about, and something that Dr. Jadeja touched upon in his talk about local knowledge. The point here is that we rely heavily on CGWB or state groundwater boards for data, while we also know that a lot of civil society organizations like ACT, like Aquadam, like FES have collected a lot of groundwater data. Is there any possibility for Atal Jal to integrate these data forms? One. And secondly, communities on their own experiential level have understanding about groundwater. Is there any way that in the planning process of water security plans, we can integrate that understanding? So those are my questions. And if that has been done in case of, say, Gujarat or in other places, it would be really nice to hear those experiences. Thanks. Yes, Sejimna, can you reply this? किस तरीके से हमने हमारे लोकल
डेटा नॉलेज को अटल भूजल की प्लानिंग में कन्वर्ट किया है? Sorry, there was an urgent call. Please, can you repeat the question? ओके, नहीं, धवल का सवाल ये था कि हमारा जो अनुभव रहा है उसको हमने कम्युनिटी की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कैसे इस्तेमाल किया, और उस जो हमारा अनुभव को अटल भूजल ने कैसे इसको रिकॉग्नाइज किया? यस, जो हमारा नॉलेज जो बिल्ड हुआ, एक तो ये चीज है कि भूजल जानकार ही डेटा कलेक्टर रहे हैं, और थ्रू देम ओनली वी हैव शेयर्ड दैट नॉलेज विद कम्युनिटी. लाइक वाटर टेबल ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसको थीमेटिक मैप्स बनाना, हाइड्रोग्राफ्स है, वाटर क्वालिटी के आइसोबाक मैप्स है, वो हम कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं थ्रू सेमिनार्स एंड FGDs एंड ऑल दैट. एंड वो जो एक्सपीरियंस जो हमारा रहा है उसको हमने कस्टमाइज्ड मॉड्यूल में हमने कन्वर्ट किया है टू ट्रेन DIP स्टाफ, लाइक क्लस्टर लेवल स्टाफ एंड ब्लॉक लेवल स्टाफ, एज वेल एज CRP मीन्स इन टर्म ऑफ इट्स, मतलब भूजल जानकारी है लेकिन अटल भूजल योजना में उसको CRP नाम दिया गया है. तो उनके लिए कस्टमाइज्ड मॉड्यूल बना के वही जो डेटा है उसको हमने यूज किया है. कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज है कि लाइक अटल भूजल योजना में ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे ज्यादा एम्फेसिस दिया गया, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज की टेक्नोलॉजीज क्या है, तो उसके ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्रीज हम बना के वो हम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए शेयर कर रहे हैं. और कहीं ना कहीं वो डेटा जो है, अगर मैं बताऊं तो गुजरात में जब अटल भूजल योजना की शुरुआत हुई तो वो कच्छ से हुई, और काफी DIPs यहाँ पे आई, तो जो हमारा केमार्क सेंटर जो है वो कहीं ना कहीं एक रिसोर्स लर्निंग सेंटर बन रहा है और फील्ड लेबोरेटरी बन रहा है. तो एक डॉक्यूमेंट्री भी अटल भूजल योजना पे बनाई गई है जिसमें काफी सारे सीन्स जो है वो केमार्क सेंटर से शूट किए गए हैं. तो इस तरीके से पूरा जो हमारा नॉलेज जो है वो गुजरात लेवल पे दूसरी DIP के साथ, DIP के स्टाफ के साथ शेयर किया जा रहा है. इवन DPMU जो है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो गवर्नमेंट यूनिट्स है, वो भी दूसरे DIP के स्टाफ की और CRP की ट्रेनिंग थ्रू ACT करवाने जा रहे हैं. तो इस तरीके से लोकल डेटा कलेक्टर रहे हैं, लोकल कम्युनिटी के साथ शेयर किया गया, और वही एक्सपीरियंस कम्युनिटी की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए यूज किया गया है. तो I think Sazina, you have a call coming up. Yeah, no issue. Yeah, so I think that's very good. I think that's very good. I think you have been able to really put that across quite well. Mansi, you had a question. Would you like to speak up? Yes, I was trying to really put it in the chat box, but first of all, thank you, Yogesh bhai. It's good to see you and also listen to the entire team, Sazina ji. Very good presentation. I will actually change my question than what I had posed here, because after the presentation, I thought it is very important to talk about the data management, and you rightly put that we need to simplify the science to local people. And at the same time, how do we really make the data robust so that in the long run, this data can be utilized, because we are not going to be there all the time to monitor what the local people are doing and how the government is managing the data. Do you think there is enough work going on in that matter? Because every year I see Niti Aayog making that as an alarm that water management is basically going to be only successful when the data management is better. That's one part, but another part I'll just add here, which was my main question there. How do we really change the demand side of our water, because we are constantly chasing GDP as an economic indicator to grow. And we are going to have serious problem if we do not work more on the demand side and really work more on the supply side. So I will stop here. You can choose to answer or just pass. We can talk outside also, because we are just a phone call away. No, there are, see, so far data is concerned. डेटा में दो चीजें हो रही है. एक तो जो है वो हम लोग ऐसे दो तरीके से रख रहे हैं. एक डेटा जो है मोबाइल पे अगर कलेक्ट होते हैं तो दैट कैन गो टू द क्लाउड. तो इसीलिए हम लोग अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ स्टार्टअप जो है
स्टार्टअप को इसमें एंगेज किया जाए, provide some sort of instrument and then the data goes to the cloud. जैसे हमने इंट्रोड्यूस किया है सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग फील्ड किट, उनका पूरा जीपीआरएस बेस है, तो आपने जैसे एनालिसिस किया विद इन 10 मिनट आप फार्मर को दे पाएंगे आपका वाटर क्वालिटी क्या है, सॉइल क्वालिटी क्या है, साइमल्टेनियस डेटा गोज टू द क्लाउड। सिमिलरली हम मॉइस्चर मीटर इस्तेमाल करते हैं, जो गुजर जानकर यहाँ करते हैं, पुट मॉइस्चर मीटर ग्राउंड पे मिलेगा, उसको पता चले आज 3 दिन तक इरिगेशन देने की जरूरत है, बट मॉइस्चर डेटा क्लाउड में चला जाएगा, वहां स्टोर हो जाएगा। उसी तरीके से वी आर ट्राइंग टू स्ट्रगल वाटर लेवल मॉनिटरिंग का जो एप्लीकेशन है, बट हम कोशिश ये करें सारे डेटा को इंटीग्रेट करने के बाद एक ऐसा एप्लीकेशन बने जो फार्मर अपने मोबाइल में सिर्फ ये डाले कि मेरा 4 एकड़ का फार्म है और मुझे इस बार पे क्यों करना है, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो that is one way forward that we are seeing from our experience. Number one, that's related to data. So far गवर्नमेंट के साथ डेटा का कंसर्न है, तो अभी हम इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं स्टेट के साथ कि जो अटल भूजल योजना में डेटा कलेक्ट हो रहा है वो ऑलरेडी MIS पे जा रहा है, तो क्यों ना उस डेटा को एक्वाफर मैपिंग की प्रोसेस के साथ जुड़ा जाए और एक्वाफर मैपिंग के जो कोर्स ग्रिड डेटा है उसको हम फाइनल ग्रिड ये डेटा को लेके और फाइन किया जाए और उसको और रिफाइन हम करें। That's a part of advocacy that is related to data. And second part जो आपने बताया डिमांड साइड वाला, तो डिमांड साइड पे काम करने के लिए आपको ट्रिकी रास्ता लेना पड़ेगा। एक रास्ता ये है कि कम्युनिटी को बिना बताए या पूरी सिस्टम को चेंज कर दो, क्योंकि डिमांड साइड पे जब आप बात करने जा रहे हो इकोनॉमी जुड़ता है उसका, तो अगर किसान को पता चले, नॉर्मली डिमांड साइड पे बात करने की मतलब सेविंग की बात कर रहे हैं, फिर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट उसकी इनकम को रिड्यूस नहीं करना है बट उसकी प्रैक्टिस को चेंज करना है। तो एज सजीना मेंशन ध्यान रिप्लेस द फॉडर क्रॉप, यहाँ एक प्रकार का फॉडर क्रॉप था जो जितना पानी लेता है उसको 1/10 पानी में दूसरे फॉडर को हम कर रहे हैं, तो फार्मर वो अपने आप करने जा रहे हैं। तो कितने लोगों ने किया हमें पता नहीं है, बट अगर एक क्रॉप 100 लीटर पानी लेता है 10 लीटर का हो जाएगा और 5 साल तक आपको कटिंग देता है, तो उसको साइलेंटली आपको वहां ले जाना है। दूसरे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के लिए उसको मोटिवेट करना, एनकरेज करना है। तीसरा जो है जिसमें कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस बदलना है, जैसे मॉइस्चर को मेजर करते रहे तो उनको पता चल जाएगा। जैसे वैरायटीज चेंज कर दिया क्रॉप का, तो जैसे हमने पिछली बार एक वीट का डेमोन्स्ट्रेशन किया था, तो वीट के डेमोन्स्ट्रेशन में जो नॉर्मल यहाँ पे वीट का तो 14 इरिगेशन देते हैं, उस डेमोन्स्ट्रेशन का तो 11 इरिगेशन उसका अच्छे से वीट का प्रोडक्शन आ गया, मार्केट में 2 रुपए ज्यादा भी मिले। बट ये डेमोन्स्ट्रेशन हमने जो सारे किए कृषि विज्ञान केंद्र के साथ किए, तो उसका एडवांटेज ये होगा कि कृषि विज्ञान केंद्र ने यहाँ का अनुभव अपने दूसरे 10,000 फार्मर तक ले गए। हमारे तो शायद 40-50 फार्मर थे, लेकिन उन्होंने 10,000 फार्मर तक लेकर, अब ये मानो कि उसमें से 1000 फार्मर में से 100 फार्मर ने या 500 फार्मर ने भी किया तो भी कितना सारा सेविंग कर देंगे। तो डिमांड साइड मैनेजमेंट में शायद इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट उसकी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करवाने के तरीके जो है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसके लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंटल लिंकेजेस इज मोर पावरफुल वे। Yeah, I think very rightly said. Demand side management, I think it's a behavioral issue. So that's the reason, there are different ways to really influence behavior of people. Thank you very much. Isha Agarwal has wanted to ask a question. Isha, are you there? Yeah, thank you, ma'am. Hello, sir. I wanted to know that our settlements, they had some kind of a traditional knowledge of how to use the water, in what quantity, how do we recharge these aquifers. Like, there in case of Gujarat, there were step wells. Step wells are known for recharging groundwater aquifers. Then there were like full systems of ponds, lakes, which were made. Like, I belong to a city, Vadodara, and their whole system was made of tanks, and these were made by the communities which had these knowledge of hydrological and geomorphological structures of soil, earth, and all. So how do we integrate all these knowledge systems again back along with the methods or the things that you have already mentioned? And also, how do we get the data related to the what kind of aquifer is present in your city, and how and what is its capacity?
So these are my two questions. Thank you, sir. Thank you, ma'am. तो मानसी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? अभी You work a lot in the No, I think Ahmedabad in this step level पे. और Mansi, are you there? Yes, I am So there. what? So just give me a moment, then I'll invite you to respond. Ganesh wanted to share something, so you keep that question with you. And Ganesh is one of the members in the Wednesdays for Water, and he is from FluxGen, and he's also the founding member of Wednesdays for Water. So over to you, Ganesh. So thank you, Dr. Fauzia. Thank you all for this wonderful session. I'll keep it quick because we are running out of time. In fact, Sir said about any startup can do some of this data monitoring on some of these things. I just want to quickly share about, we have been doing water monitoring for groundwater extraction from borewell and also groundwater levels on the aquifers through piezo sensor. We would be very happy. I mean, and because now all the big industries or various agro-processing industries today have a strong restriction that they have to reduce their water consumption by 20% in next 2 years. So we not only monitor and help them understand what their groundwater level is and groundwater extraction is, and also eventually help them to reduce their consumption. So like this, we have also been able to integrate some of the sensors like soil moisture sensors and other in some of our thing. I just wanted to share any of this expertise that we have developed. Would it be of any value to Dr. Yogesh ji, and see if you could help in any of the research findings through our little expertise that we have developed. Thank you, Ganesh. Yogesh ji, you have already been using sensors, and here we have a Wednesdays for Water partner who is into developing digital technologies and sensor-based technologies. So would you like to throw some insight on that? Yes, Ganesh, this sensor we are also using over here. But what happens, sensor अगर मान लो कि हमें एग्रीकल्चर एरियाज में यूज करना है तो छोटे छोटे फार्मर्स कैन नॉट अफोर्ड दिस सेंसर, और तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लो कुछ क्लस्टर के बीच में 3-4 सेंसर लगाए एंड भूजल जानकार ऑल्सो मॉनिटरिंग द ग्राउंड वाटर, क्योंकि क्या है कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट जैसे मैंने पहले बताया था कि इनविजिबल, उसको विजिबल बनाने के लिए वाटर लेवल इज द बेस्ट टूल कैसे दिखा सकते हैं, और उसको रेगुलरली किसी न किसी को बताते रहना पड़ेगा. तो सेंसर कैन गिव डायरेक्ट इंफॉर्मेशन टू द क्लाउड, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सेंसर के साथ भी रखा है एंड कुछ मैनुअल टच भी रखा है, क्योंकि ह्यूमन एंगल शुड नॉट मिस आउट फ्रॉम दिस मॉनिटरिंग पार्ट. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो हम कोशिश ये करते हैं कि अगर मान लो 5 सेंसर है तो 50 कुएं भी होने चाहिए जो भूजल जानकार मॉनिटर, दे आर द लोकल जगह से है, तो वो every time they give this information, but these sensors are very much useful in case of water budgeting करना है, ये सारी चीजें करना है. तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी तो हमारे जो सारे जो मॉनिटरिंग है, हाँ, जो सॉइल मॉइस्चर का बात किया मैंने, वाटर लेवल सेंसर का बात किया, वेदर स्टेशन का बात किया, ग्राउंड वाटर लेवल, उसको भी हम एक कोशिश करें कि एप्लीकेशन बन जाए तो उस एप्लीकेशन के जरिए क्लाउड पे चला जाए. तो ये चारों क्लाउड जो है एक साथ में कैसे मर्ज करें और कैसे एक ऐसा एडवाइजरी मैकेनिज्म बनाया जाए, क्योंकि डेटा कलेक्ट करना एक बात है, डेटा का इंटरप्रिटेशन करके एक एडवाइजरी में कन्वर्ट करना. नॉर्मली जैसे वेदर एडवाइजरी 4 दिन के बाद बारिश आने वाला है, उसका क्या मतलब है? हाँ, कुछ अगर जानकार लोग खुद पता चल जाएगा कि 4 दिन के बाद बारिश आने वाला है, तो बारिश आना तो मैं क्या करूँ, उसका कुछ मुझे एडवाइस मिलना चाहिए. मेरा मॉइस्चर इतना परसेंट है तो मुझे क्या करना है, उसका मुझे एडवाइस चाहिए. वाटर लेवल मेरा 2 मीटर राइज हुआ तो मेरा टोटल क्वांटम ऑफ वाटर कितना है, ये क्रॉप करूंगा तो मुझे सफिशिएंट होगा कि डेफिसिट होगा, क्या है. तो अभी हम जो इस टेक्नोलॉजी को जो हमने इंट्रोड्यूस किया है वो अभी भूजल जानकार के जरिए इस्तेमाल यूज किया है ताकि वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करे, बट साथ साथ में इसका एडवाइजरी में कन्वर्ट करना जरूरी है. और उस एडवाइजरी को कन्वर्ट करने के लिए लोकल लेवल पे आज जो हमारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, आज जो हम काम कर रहे हैं, वो डेटा भी उसके साथ में जा रहा है. जैसे मान लो कि
एक खेत में अगर इसने सेंसर लगाया, उसने इस बार गेहूं लिया, वाटर फ्लो मीटर के जरिए उसने बताया कि मैंने इतना लीटर पानी को इरिगेशन में यूज कर दिया। वो ज्यादा है कम है वो उसको पता नहीं है। आज हमारी समस्या ये है कि हम जो कर रहे हैं, डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, ज्यादा है Sir, कम है, इसकी कंपैरिजन में क्या है। तो that thing we need to visualize with the users basically। तो लेकिन सेंसर और इन सारी चीजें जो बहुत जरूरी है, एफिशिएंटली और कंसिस्टेंटली डेटा देती है, तो उसको कई रेशियो में और बैलेंस वे में इसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी दैट आपने बताया। तो हम इस सेंसर को भी, क्योंकि हमने छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि आप भी रिचार्ज करो और सेंसर से मॉनिटर करो। तो ऑल डेटा, जितना ग्रैन्युलर लेवल पे डेटा हमारे पास आएंगे, उतना ज्यादा हम इसको सही ढंग से मैनेज कर पाएंगे। और इसमें ये भी रहता है कभी कभी, जैसे कुछ स्टार्टअप जो है, तो स्टार्टअप्स कुछ ऐसे होते हैं, दे वांट टू रिमेन क्लोज, दे डोंट वांट टू ओपन देमसेल्फ फॉर द कम्युनिटी, क्योंकि स्टार्टअप इज ए विद द बिजनेस बेसिकली। उनको आगे जाके अपना भी रिसोर्सेज, अपना बिजनेस भी करना है। हम चाहते हैं कि भूजल जानकार और स्टार्टअप का मिलकर एक ऐसा एंटरप्राइज मॉडल निकल के आए। और अगर भूजल जानकार जो उनका फ्रेंचाइजीज बन जाते हैं स्टार्टअप का, तो दे कैन प्रोवाइड एक एफिशिएंट कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस, क्योंकि आगे जाके डेटा शुड बी पेड बाय द यूजर्स। वो हम भी मानते हैं, क्योंकि मुफ्त का डेटा तो उसको भी काम में नहीं आएगा, बट they will understand the value of data and information and ultimately knowledge, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नॉलेज में कन्वर्ट हो रही है। सर आई वुड डेफिनेटली आपको लिखना चाहता हूँ और आपके साथ संवाद करना चाहता हूँ। सॉरी मेरा हिंदी बहुत ही बुरा है, प्लीज डोंट माइंड। I'll connect you, Ganesh. What I'll do, I'll connect you with Dr. Jadeja, I think through email, and we can, I think this is something that definitely can be taken forward, especially, you know, I am looking at it from more like climate smart agriculture. Yes. So I will discuss with you also maybe some inputs that I have on that, and then you can collaborate with Yogesh ji to really work on that model of climate smart agriculture. So thank you so much. Thank you. Now I would like to invite Mansi, if you are there, to respond to Isha on how can the local knowledge, you know, that is there, the traditional knowledge that we talk about, how communities work, how that can be integrated, you know, with the contemporary knowledge that we have, and for better execution of projects. So that's something that, and I would also like you to alongside close this session by thanking the three speakers and announcing the next Wednesdays for Water topic. Over to you, Mansi. Thank you, Fazia. And first I will answer Isha. Isha, part of your question was actually answered by the speakers today. Maybe the sector was different to talk about groundwater, and you talked about more about, you know, this lakes and ponds and step wells. But the process of community engagement and process of knowledge management does not vary a lot in all these aspects, you know, because when we are talking about water management, we are already in the integrated mode of water management. It's just that today we are discussing groundwater. So part of groundwater recharge is also taken through lake restoration project. We already are doing catch the rain program in the country. We have in the National Water Mission, there is major impetus on reviving most of the village ponds. And one of the things which I have my own reservation is deepening it, and I'm not in favor of it, but there are initiatives going on. You will also learn that there is within the Amrit project, there is also a lot of impetus to revive these wells and step wells as well. And within the heritage also step wells are getting revived. And it's not limited to just the aesthetic part of the heritage when we talk about revival of the step wells. So I will say that there is more attempt now because we are in a water distress situation. India is one of the leading countries in water distress. I think there are many initiatives which are going on at this moment in time. So today, Yogesh ji, Sazina and Neeta talked about groundwater, but in some other session, we may talk about how these aspects are getting addressed. And actually, we have not talked enough about urban lakes and ponds and what kind of works are going on. And ironically, it is my area of work also, and we are keeping it for baad mein karenge, because I also talk about it.
But trust me, if you go through the Catch the Rain and initiatives right now going on, there are a lot of initiatives. You also may be knowing Vishwanath from Bangalore, who is just out there to recharge all the wells. You know, Riaz is here, who is working hard on the heritage part of it. So there are people who are working. Shikha is working from Jaipur on reviving. Nishant is working from Lucknow. So I'm just giving few names to throw some lights on the points that there are people who are working here and there on these aspects, the one which you are asking. It's just that we need people like you who can just connect these dots and tell us the macro picture that there are efforts going on, you know. So, and that's the role of knowledge managers. So people like Yogesh ji and team are actually doing a lot of things on ground, and then there have to be set of people who have to also sit through and do the knowledge management. So they have produced set of data and knowledge which needs to go to cloud somewhere he is talking about, but that has to come back to people, and he put it very simply. He had a very beautiful line, bringing the science to the society in a simple way, and then bringing the society's knowledge to the science in the data format, of course. So you have to understand that this is a cyclic process also in the knowledge and resource management. If we do not manage knowledge properly, resource management is never going to be successful. So it's going together. So I will stop here. I hope I have managed to answer your question. Yes, Mansi, just wanted to add to what you've already said, that prior to starting any such initiative which is bottom up approach, generally we use a lot of qualitative tools also in terms of resource mapping and social mapping, where we get community together to help us, trying to first understand what are those successful practices which existed there. And as you rightly said, while they may not have, they aren't really scientists in the conventional sense, but probably they do understand the hydrology quite well. So when you ask them to do the resource mapping, they actually bring that out very beautifully on paper. And all our schemes at this point in time are talking about community participation. They're talking about village water management committees which are there. So there are engagement with people is very important. What initiatives like Yogesh has presented, and there are others as Mansi had mentioned, what they are trying to do is that, to make these narratives which are part of schemes and documents, how they see the light of the day. So that's what they are trying to do. So that's something that we need to understand. So that's the reason why we are going for a bottom-up approach that is there. So thank you, Mansi. Mansi, would you like to also conclude this session and announce the next? Thank you all. First of all, may I take the opportunity to thank Yogesh Bhai, to see him after a long time, and also thank to share his knowledge and his team's hard work on the ground. Thank you, Sajina ji. I think a lot of things to do with you after I heard you today. So I had just known you, but now I see you and hear you. And Neeta ji, thank you so much for bringing the ground realities to us, because many of us are unaware of many things which we don't encounter when we are working in different mode. So I really thank all the three speakers. It was really, really inspiring, and kudos to all of you to work on the ground. It's not an easy task to work with the community. Water management is social management. It is not water management at all. So I keep repeating, if we have to just manage ourselves, water will manage itself. So I think that's a good way to end. And I would also like to thank Fauzia for conducting the session very smoothly as always. You are a very good, I will say leader of session. And with this, I would also like to announce for next Wednesday, and also be proud to for the entire team that we have started our 11 months now. And next Wednesday, we will continue celebrating Women in Water. You heard many times, and today we had two women also talking about that women have to be on board in water management. Next 2 weeks, we celebrate Women in Water, and we take the first part as Science of Water. And we are actually going to talk about water museums, and it's an international event. So please join us next week. We are airing this session on a fixed time, 5 p.m. We are not changing, 5 p.m. IST. So
come and join us for Water Museum. And the week after, we will talk about again water warriors from the ground. So we have put it in two parts, managing the science of the water and then managing the water itself, and how women are really getting into it to celebrate Women's Day, as it's important for us. You know, it's underrepresented still. We are trying to bring them on board. Please take care of yourself. We look forward to having you Wednesday and Wednesdays to come. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Thank you, Mansi. Thanks. Thank you, presenters, for joining us today and enlightening us with your wisdom. Also, thank you all the participants for joining us and making the session interactive. Besides walking and talking water, worries and wisdoms collectively, we see this as a platform to cross-connect and expand our network and explore possible collaborations. We are also making notes to publish both scientific and non-scientific work. Here is a glimpse of some of our writings. You may reach us through email, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, and also look at our website www.w4w.in. We look forward to your suggestions and comments to make the series more meaningful and engaging. And meanwhile, we hope that you appreciate today's session. We represent Tata Institute of Social Sciences, Hyderabad, Terry School of Advanced Studies, New Delhi, Environmental Design Consultants, Ahmedabad, FluxGen Sustainable Technologies, Bangalore, Counterview, and we are supported by Wiki's Water Resources Council. We truly appreciate your support and encouragement in conducting this series, and we hope that you will stay tuned with us through our social media platforms and our website, and you will write to us at our email IDs.